So guys, welcome to this video, and this video is about Commonwealth Scholarship. We got so many questions on Scholars Avenue to invite some of the scholars from Commonwealth because this scholarship has a bit complicated and weird application process, and I want to know, like so many of you guys wanted to know about the whole application process, interviews, and their whole experiences. If you want to go back to your countries and like if you want to come to UK, and what's the application process for that and everything like that. And now I have invited two Commonwealth scholars. One is Sharik Wahid, and Sharik has a background in geology and social sciences from University of Punjab, and then he got a Commonwealth scholarship and he studied at University of Leeds, and now he's a researcher, PhD researcher at University of Leeds also. We have Fawzia Tabassum. She's a graduate in civil engineering from NED University, and then she got Commonwealth scholarship in also related to environment, I think, and she studied at UCL, and now she's working at Binez in the UK. So welcome, guys, and thank you very much for your time. So because that's important, और सबसे important ये था कि बहुत से लोगों को बहुत सारे questions थे, बहुत सारे सवालात थे कॉमनवेल्थ को लेके, और ये कोई भी आप लोगों से बेहतर नहीं बता सकता जो ऑलरेडी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ले चुके हैं और उनके experiences हैं, diverse experiences of course. So I wanted to know from you guys who have experience firsthand. So over to you guys, and I wanted to know a bit about your more background, and then we can start further. We can start with maybe Fawzia. Sure. So I don't know how far back you would want me to go, लेकिन मैं अपने bachelor से start करूँगी, ठीक है? So Yeah, मैंने sure. मैंने NED यूनिवर्सिटी से जो कि कराची में है, so मैं belong करती हूँ कराची से, तो मैंने वहाँ से किया था urban engineering, which is similar to civil engineering, लेकिन थोड़े से Yeah. इसमें differences हैं. ये बहुत complicated question है, cause तो मैं ये नहीं answer कर सकती कि दोनों में क्या difference है, Yeah. but it is very similar to civil engineering. तो उसके बाद जो है मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, मेरी CGPA थी 3.54 if I remember Good. correctly. Good. Yeah. फिर उसके बाद जो है मैंने तकरीबन 2 साल एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब की थी. अच्छा, मेरी कोई जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा complicated या इस तरह की नहीं थी. Actually I was just like sort of baby there because जो मेरे बॉस थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे और वो मुझे बिल्कुल अपनी Yeah. बेटी की तरह ट्रीट करते थे. तो वो मुझे बहुत अच्छा, वो Nice. कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी. सो बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया तो सिर्फ वहाँ पे 2 खवातीन थी. तो एक तो मैं थी और इसके अलावा एक सीनियर इंजीनियर थी और Yeah. तकरीबन महीने बाद उन्होंने अपनी जॉब स्विच कर ली थी. सो मैं एक वाहिद लड़की थी वहाँ पे. This happens और in civil engineering quite often. yeah. अच्छा, वो थे Yeah. कॉन्ट्रैक्टर्स. सो वो मोस्टली जो है वो साइट वगैरह पे होते थे. सर जो थे मेरे वो होते थे ऑफिस में. तो वो काफी मतलब मैंने काफी चीजें उधर से सीखी, लाइक क्वांटिटी सर्वेइंग, a little bit of structure, वो सारी चीजें. But I wouldn't say it was like extremely civil engineering focused. So I wouldn't say that having a lot of experience helps with Commonwealth scholarship. There's a lot of different things that I will later on discuss that really helps. तो जब मैंने अपना Yeah. एप्लीकेशन दी थी तो मैंने उस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था. मैं साथ साथ जो है दूसरी चीज़ें भी करती रहती थी. तो मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था एनवायरनमेंट में. एंड ये मेरा इंटरेस्ट जो है बैचलर से स्टार्ट हुआ था. सो उसके बाद मैं डिफरेंट कोर्सेज करती रहती थी क्योंकि मुझे बड़ा शौक था चीज़ें वगैरह सीखने का. अच्छा, मैं इसके अलावा जो है ना फ्रीलांसिंग करती थी, कंटेंट मार्केटिंग करती थी बेसिकली. Good. और वो जो है मैं वो कंटेंट मार्केटिंग यूजुअली करती थी जैसे इन्वायरमेंट सेक्टर में या साइंसेस के एरियाज में, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था कॉमनवेल्थ के लिए क्योंकि मैंने वो चीज़ वहाँ हाईलाइट की थी. एनीवे, सो आई अप्लाई सो द फर्स्ट ईयर आई अप्लाइड फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप और मैं साथ साथ और जगहों पे भी अप्लाई कर रही थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. लाइक इटली में एक यूनिवर्सिटी है पॉलीटेक्निको डी मिलानो, जो बहुत सारे लोगों को आई थिंक पता है ऑलरेडी. उधर भी मैंने अप्लाई किया था. सो जब मैंने फर्स्ट ईयर, ये मैंने सेकंड ईयर में अप्लाई किया था इटली में. फर्स्ट ईयर में आई वाज लाइक कंप्लीटली फोकस्ड के जो है मैंने कॉमनवेल्थ में जाना है या फिर मैंने फुल ब्राइट लेनी है. पर फुल ब्राइट में अगेन ये बात थी कि वो जो है आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, कॉमनवेल्थ एक्सपीरियंस नहीं मांगते जो नॉर्मल कॉमनवेल्थ है. Yes. सो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फेल था बिकॉज लाइक ऑफ कोर्स मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. इट वाज मोर लाइक मी जस्ट लाइक ओके अप्लाई करते हैं देखते हैं क्या होता है टाइप ऑफ सिचुएशन.
फिर सेकेंड Good. ईयर मैंने दोबारा अप्लाई किया, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की थी। उसमें मैंने बहुत सारे जो है स्कॉलर्स को रीच आउट किया था, उनसे जो है मैंने उनके एक्सपीरियंसेस मालूम किए थे। अपने जो है मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स पे काफ़ी वर्क किया था, अपने मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे काफ़ी वर्क किया था। Anyway, I got the scholarship. I moved to the UK. And the sad part is it was COVID. It was peak COVID. तो अब जब मैं यूके आई तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन थी, सो मैंने ग्रैंड Hmm. टोटल ऑफ 2 क्लासेस ली थी यूसीएल में। बाकी मेरी सारी Good. ऑनलाइन क्लासेस थी, व्हिच वाज लाइक रियली Hmm. डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ आई एम अ मोर ऑफ अ सोशल काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मुझे वो एक्टिविटीज में पार्ट लेना था, बट दैट्स फाइन। एनीवे, सो Yeah. उसमें ये था कि पहला जो हाफ था वो क्लासेस थी हमारी, लाइक हमें मॉड्यूल्स करने थे, सेकंड हाफ हमारा रिसर्च था। So because I didn't want to stay at home anymore, तो मैंने जो है एक Hmm. कंपनी के साथ की थी अपनी रिसर्च। इको नोमैड उनका नाम था, if I Hmm. remember correctly, it's been a while। तो उनके साथ मैंने की थी, वो मेरे प्रोफेसर भी थे यूसीएल में ही, उनका स्टार्टअप था जो वो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उसमें ये था कि मुझे फार्म्स वगैरह पे जाके जो है रिसर्च करनी थी, सैम्पल्स कलेक्ट करने थे। इट वाज अबाउट लाइक स्मॉल स्केल बायोडाइजेस्टर्स जो वो लोग फार्म्स पे लगा रहे थे। तो उधर जो है मैंने अपनी रिसर्च की थी। फिर उसके बाद रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैंने उन्हीं के साथ एक शॉर्ट इंटर्नशिप की थी Hmm. पाकिस्तान वापस आने के बाद, ठीक है। अच्छा, Hmm. पाकिस्तान वापस आने के बाद while I was looking for a job that would suit my interest, मैंने अपना जो है ना एक sort of small business शुरू कर लिया था। Again, I Hmm. was very much interested in environment, so मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी Enviropreneur के नाम से, which is like about environmental awareness. I also used to Hmm. do content marketing through it, so I would reach out to like European like massive companies and like do work with them. I was also working with a platform named Contento, वो भी content marketing करते हैं। Hmm. And then Good. so I kept doing that for 2 years. But in the meantime, like I was noticing that it was better for me to like go back to my own field. तो उसके बाद जो है मैंने यूके की कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। एंड वो काफ़ी जो है ना इंटेंसिव प्रोसेस था। मे बी वी कैन शेयर लाइट ऑन दिस लेटर ऑन, क्योंकि Yeah. मुझे पता है Yeah. आई एम Sure. yapping a lot। Yeah. So Okay. Th- after Yeah. 2 years, That's then I moved to the UK. I got a job through LinkedIn with Benny's. I moved to the UK, and here I am. And apologies for yapping. Yeah. No worries. It was like a very detailed introduction, and I like it. And now we can go with Sharik. Sharik, how is your experience overall, your background, and all that you want to share? Then we can start. Yeah, so I had a dual graduation actually. So in 2017, I went to Lahore. I'm basically from Rawalpindi, but Hmm. for I was interested in geology, and geology. It said that the best course that they offer in वो Pakistan, वो Punjab पंजाब University यूनिवर्सिटी से. में होता है. So, or Islamabad, mein, I didn't had much options. There was just one other Hmm. university. I was not interested in that. So I went to Hmm. Lahore to start, my undergrad in applied geology. I had a specialization Hmm. in petroleum engineering and petroleum geology. And while doing that, साथ ही साथ, because I had a lot of time at hand, so I Yeah. started my, private BA, because I wasn't always interested in social sciences, Hmm. but पाकिस्तान में perception होता है ना कि scope वाली field करनी and all that. वही. So that's why I never pursued it like properly any social sciences. तो ऐਵੇਂ ही Hmm. दिल पे लाने के लिए मैंने जो है वो अपना private BA कर लिया. So within 2 years I had completed the BA, और उसके बाद जो है वो मेरे 2 साल रह गए थे undergrad के, और 2 साल में MSc के लिए मैं evening program में apply कर सकता था. So Hmm. वैसे ही शौक के लिए I was not considering that I'll take it as a profession. I applied Yeah. in MSc gender studies. So Hmm. timeline match कर रही थी कि 4 साल में मेरा undergrad होता, और ये मतलब 4 ही साल में मुझे एक additional, और उस वक्त जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी dual graduation offer करती थी. Now they don't. So मेरा Hmm. last batch था. So then जो है वो मैंने इतना serious नहीं था. मैं second year के gender department was very famous, that they have
really good parties and all that. So Yeah. I was like, okay, time मेरे पास है, let's time pass के लिए कर लेते हैं. तो मुझे शौक भी था. But once I started gender studies, I was like, okay, this is very interesting, and I was like deeply engaged and indulged in the whole degree. So then जो है वो मैंने gender studies को भी properly, जो वो इरादा नहीं था मेरा कि मैंने ऐसे करना है, बट वो हो गया, तो मैंने उसको भी प्रॉपर्ली सीरियस लेना शुरू कर दिया. और देन आई ग्रेजुएटेड विद ड्यूअल ग्रेजुएशन. जियोलॉजी में मेरा जीपीए ठीक था. हमारा प्रोफेशनल सिस्टम होता है लाइक प्रॉफ सिस्टम, so there was no semester system, there was no GPA, but I had like a decent enough, but I won't say that it was exceptional. Gender studies में I had like 3.85 GPA. Then I had rank first ranking and all that, जो awards होते हैं, which are important in common. Excellent, बच्चे. So in that way, I got that dual graduation. Then मैंने काम शुरू किया. There were some non-government organizations. I did some internships there with Safia. Then, Family Planning Association of Pakistan के अंदर at that time 2022 के अंदर काफ़ी सैलाब वगैरह flooding वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी. So I started developing, like I started working there as a project development manager, where I developed projects related to humanitarian, aid and how women and children, marginalized groups, how they are affected more. And then, I was developing projects for them. और इसके साथ साथ मुझे रिसर्च का क्योंकि शौक है, तो मैं इंडिपेंडेंटली रिसर्च भी शाम के वक्त कर रहा था. कुछ मेरे पेपर्स थे, सो आई पब्लिश देम एज वेल. एंड देन आई अप्लाइड फॉर दिस. Why I chose environmental development? Because I had two very contrasting fields. One on one side, like it was like natural sciences, hard sciences, geology, and on the other side gender studies. And when I used to introduce myself to people, they used to say कि ये क्या, इसका तो कोई तालमेल नहीं है, क्या लिंक क्या है, क्या सोच के तुमने किया था. At first मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये क्या कॉम्बिनेशन है. Yeah, so इनिशियली क्योंकि कोई मतलब सोच के मैंने नहीं किया था. इट वाज जस्ट कि मुझे इंटरेस्ट था. सो आई डिडंट थॉट कि मैं जेंडर स्टडीज को प्रोफेशनली लूंगा, बट देन जब मैंने काम शुरू किया अपनी रिसर्च के अंदर, तो आई थॉट कि अब फिर ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि जेंडर एंड एनवायरनमेंट, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरडिसिप्लिनरिटी एट दैट टाइम उतना ज्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं था. So then what I started doing was I started combining both of my fields. कि जब भी कोई भी डिजास्टर होता है या जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसके इम्पैक्ट जो हैं वो वुमेन के ऊपर, जेंडर मार्जिनलाइज लोगों के ऊपर ज्यादा होंगे. सो देन जेंडर डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटी के ऊपर मैंने काम शुरू किया. रेजिस्टेंस कैसे डिफरेंट हो सकती है. सो वो जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच जो है, जिसके ऊपर अब इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट. सो आई सॉर्ट ऑफ फ्यूज देम. एंड जो ब्रिज बनाने का काम था वो मैंने किया विद माय रिसर्च. कि कुछ मेरा प्रोफेशनल वर्क भी ऐसा था. सेकंड जो है वो मेरा रिसर्च वर्क ऐसा था जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं फ्यूज करूं दोनों फील्ड्स को, कि जितना ये डिफरेंट लग रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो मतलब सर पैर का कुछ मिल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शुमाल में बात जा रही है, एक जनूब में जा रही है. तो उसको मैंने ब्रिज करने की कोशिश की विद माय रिसर्च के ये जो है वो इतना कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है जितना कि ये साउंड करता है. So that was my experience. Then I applied in 2022 kind of. So I applied there. I applied for different scholarships. Commonwealth again, like Fawzia, it was not like the only scholarship that I was focusing on. मेरा जो dream course था, it was Erasmus Mundus का NOHA program. It was International Humanitarian Action. So exactly. That was like my number one priority. Then जो है Erasmus के मैंने 2 और programs के अंदर भी apply किया था. I got selected in their Gamma program, which is about gender and women studies. और साथ ही साथ शिवनिंग के लिए मैंने apply किया था. So मुझे ये था कि I believe in कि जितनी चीजें मैं ज्यादा apply कर सकूं, मेरा chance उतना ज्यादा होगा. So I applied to a lot of programs के जिसमें भी हो जाए. Obviously, it should be related to field. Yeah, exactly. So I applied for like 3 of Erasmus programs. I applied for Shivning. I got selected for their interview stage and all that. And Commonwealth का जो है मैंने apply किया, but Commonwealth was not like my sole priority, because first priority. As you said, as you rightfully said,
कॉमनवेल्थ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फील ज्यादा होता है. जितना इरास्मस है Yeah. आपको एक ऐसे लिखना है सॉर्ट ऑफ लाइक मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर. दैट्स इट. शिवनिंग के अंदर 4 एसेज हैं विच आर लाइक वेरी स्ट्रीमलाइन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. कॉमनवेल्थ के अंदर इट्स आई थिंक 10 to 12 एसेज. जब वो पहली दफा पढ़ते हो तो कहते हो कि एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं तो मैं रिपीट करना शुरू होऊंगा. तो उसके लिए फिर आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. बट फिर मुझे यही था कि मैंने शिवनिंग के लिए इरास्मस के लिए एसेस तो मैंने बना लिए हैं. सो उसी को मैं मतलब उसी को मैं चेंज करके आई कैन एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू कॉमनवेल्थ. एंड देन आई अप्लाइड. और फिर प्रोबेबिलिटी वाइज भी जो है वो कॉमनवेल्थ की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कॉमनवेल्थ के अंदर मैंने कॉमनवेल्थ की 2 टाइप्स हैं. देयर इज कॉमनवेल्थ मास्टर्स प्रोग्राम, देयर इज कॉमनवेल्थ शेयर्ड प्रोग्राम. आई डिडंट अप्लाई फॉर मास्टर्स बिकॉज उसके अंदर एचईसी इन्वॉल्व होती है. देयर इज हैट टेस्ट आई गेस जो आपको देना पड़ता है. आई डिडंट वांटेड टू गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस. शेयर्ड जो है वो थ्रू आउट सिलेक्शन जो है वो यूके का कॉमनवेल्थ कमीशन और यूनिवर्सिटीज करती हैं. सो देन जो सिलेक्शन थी वो भी मुझे लग रहा था कॉमनवेल्थ की मुश्किल होगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ पर प्रोग्राम स्कॉलरशिप देती है. सो अगर इरास्मस के अंदर जैसे जो जिस प्रोग्राम में मेरी सिलेक्शन हुई, दे सिलेक्टेड आई थिंक 20 to 25 पीपल फॉर दैट प्रोग्राम. Yes. बट कॉमनवेल्थ के अंदर पर प्रोग्राम दे आर गोइंग टू ओनली सिलेक्ट 1 or 2 people. Like my university told me that in my batch there were like some 8,000 people who applied and they only granted scholarship to 2 people. So उस probability wise भी I was like कि commonwealth की selection के chances भी कम है. So मैंने ज़्यादा तवज्जो बाकी में दी. But then miraculously I got commonwealth on my first attempt, both in University of Leeds and in same program MSc Environment and Development in University of Bristol. So then I waited in like मेरे जो future plans हैं उसके हिसाब से कि Erasmus का program बेहतर है, Bristol बेहतर है या Leeds. So then I did a comparative thing, or then I Nice. selected University of Leeds. Yeah, that's really nice to listen about your experiences and your life, like whole experiences, what you guys were doing in Pakistan and how you guys did your masters in the UK. No, I will be a dumb student and imagine me a dumb student and I will ask you very dumb questions like how to start and who can apply for this scholarship? What is the difference between Commonwealth shared and simple Commonwealth master scholarship? And I will ask you very dumb question that I know nothing about this and like I want to know. So the first question is who can apply for the Commonwealth scholarship and what are the categories of scholarship? We can start with Fozia and then Sharik adds to it, I think. Yeah, so there is the normal Commonwealth scholarship, the one that I applied for. उसमें ये होता है, इसमें HEC involved होती है, जो कि I don't want to throw shade on anyone, but वो थोड़ा सा जो है ना उधर जो है ना थोड़ी सी complications हो जाती है. Because मैंने जब first time attempt किया था और second time मैंने attempt किया था, दोनों में मैंने उनको same ही ऐसे दिया था. तो मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे दूसरी दफा क्यों टेस्ट के लिए बुलाया था और पहली दफा नहीं बुलाया था. So there is this. So there's then दूसरी स्कॉलरशिप होती है कॉमनवेल्थ शेयर्ड. अब उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. शारिक माइट ऐड टू दैट, बट आई थिंक वन ऑफ देयर स्कॉलरशिप्स इज जहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जो करवाना होता है. आई डोंट नो वो शेयर्ड है या कोई दूसरी है. So again, then there is like Chevening scholarship. वो so it's a different name, but वो sort of similar है Commonwealth से. But उधर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो मेरे पास नहीं था. मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब की थी, लेकिन मेरा 2 साल से कम एक्सपीरियंस था. सो नॉर्मल जब आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की बात करते हो तो वो आप जो है वो यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद या इवन व्हाइल यू आर स्टिल इन योर लास्ट सेमेस्टर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो. So yeah, Sharik, you might want to add something more. Yeah, I think you don't need any experience in Commonwealth shared. So when it comes to Shivening scholarship, the main difference that I saw, because I gave I went to the interview stage for Shivening as well. I started with Shivening application and then I applied later on in Commonwealth. The same batch, but I think the timeline of Shivening is the deadline is much earlier as compared to Commonwealth. So Shivening ke andar they prioritize leadership experiences. So the focus is they want to prepare leaders for tomorrow for your country. The funder is same, it's FCDO I guess. So it's the similar one, but Shivening ke andar wo focus hai. जो Commonwealth Masters है, HEC is involved. So overall, because I don't know it, the process when I read about it, it
felt a little bit more complicated. So वो उस तरफ मैं गया ही नहीं, मैंने मास उसके लिए अप्लाई नहीं किया था. But again उसकी timeline, और it's not a dumb question that you are asking because it's a very basic question. There was a guy that I was mentoring last year, and he was he applied actually for Commonwealth Shared. He didn't got selected. And then like this year, he was like, now I'm applying again, and he was sending me the link. And I was like, this is not shared scholarship that you're applying for. सो बिकॉज नाम सेम है, कॉमनवेल्थ, तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं उसको. जो कॉमनवेल्थ मास्टर्स है HEC के थ्रू, उसका प्रोसेस यही है कि आपने HEC के अंदर हैट टेस्ट देना होता है. उसके लिए जैसे फौजिया ने बताया कि देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर दैट एंड ऑल. उसके बाद फिर आपने आई गेस एसेस वगैरह लिखने होते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उसकी डेडलाइन जो है वो अभी भी इस ईयर इट्स ओपन. सो वो पहले है. कॉमनवेल्थ की जो डेडलाइन होती है अराउंड नवंबर दिसंबर होती है डेडलाइन. और इसके अंदर जो है वो आपने कॉमनवेल्थ मास्टर्स के लिए जो है आप शिवनिंग की तरह अप्लाई करते हो, यानी कि यू अप्लाई फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स. देन यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अलग से अप्लाई करना होता है. आई गेस फॉर कॉमनवेल्थ मास्टर्स आपको 3 प्रायोरिटीज देनी पड़ती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और उसके बाद जो है वो आपका एक ही एप्लीकेशन प्रोसेस होती है. कॉमनवेल्थ शेयर्ड इज शेयर्ड बिटवीन यूनिवर्सिटीज, British universities and Commonwealth Commission. So वहाँ पे आपकी लिस्ट एक वो अनाउंस करते हैं हर साल के शुरू में, ठीक. जहाँ पे वो 6 कैटेगरीज हैं उनकी, और उन 6 कैटेगरीज के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं. जैसे कि डिजास्टर रेजिलियंस एक उनकी कैटेगरी है, आई गेस नाम कुछ उसका थोड़ा सा अलग फैंसी है, मुझे याद नहीं है. तो उसके अंदर जो है वो जैसे कि MSc इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर 6 प्रोडक्ट्स होंगे, नॉट प्रोडक्ट्स, डिग्रीज होंगी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की है एक डिग्री, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की है, LSE की है, UCL की है, व्हाटएवर, ठीक. मुख्तलिफ डिग्रीज होंगी और आपने हर एक के अंदर अलग अप्लाई करना है. सो प्रोसेस ये होगा कि अगर इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, शेयर्ड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा कि मैं उस लिस्ट में जाऊंगा और उस लिस्ट के अंदर जाके मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करूंगा कि कौन कौन से मेरे एरिया के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे मैं मैच करता हूँ, ठीक है. उसके बाद जो है वो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग से पहले अप्लाई करूंगा. जैसे कि मैंने कॉमनवेल्थ मास्टर्स के शेयर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर अप्लाई करना है, तो मैं पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में जाऊंगा, उधर मैं अप्लाई करूंगा. यू डोंट नीड टू हैव एप्लीकेशन, आपको सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करानी है, ठीक है. आपके पास एडमिशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एडमिशन ऑब्वियसली टाइम लेगा. तो आपने सिर्फ एडमिशन सबमिट कराना है. वो आपको एक एप्लीकेशन या रेफरेंस नंबर देते हैं, ठीक है. और वो जाके आपने कॉमनवेल्थ में जब आप उसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उस नंबर को पेस्ट कर देना है, अगर नहीं है तो देयर इज नो इशू, ठीक. सो उसका प्रोसेस अलग है. ये एक अच्छी बात इस तरह है, ये आपका चांस सिलेक्शन का बढ़ इस तरह से जाता है कि आप you can apply for as many programs as possible. They are going to evaluate for as many programs as possible, ठीक. तो अगर आपने कॉमनवेल्थ मास्टर्स में करना है, एक कॉमनवेल्थ कमीशन के जो बंदे हैं वो आपका ऐसे पढ़ेंगे, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू और रिजेक्ट यू. बट यहाँ पे इस केस के अंदर आपकी एक एप्लीकेशन नहीं जा रही है. अगर आपने मैंने 3 प्रोग्राम्स के लिए कॉमनवेल्थ के अप्लाई 3 या 4 के लिए अप्लाई किया था, बट आई नो सम पीपल, देयर वर सम नाइजीरियन स्कॉलर्स हु टोल्ड मी दैट दे अप्लाइड फॉर 8 प्रोग्राम्स in one batch as well. So that आपका जो एप्लीकेशन है वो 8 दफा जा रही है. That you are mentioning is that you are mentioning that people apply for 8 programs. It was related to Commonwealth Shared, right? Yeah, because I said कि Commonwealth Shared के अंदर हर प्रोग्राम हर प्रोजेक्ट को अलग से स्कॉलरशिप मिलती है. तो जैसे कि मेरा प्रोग्राम था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर कर रही सेम प्रोग्राम दे रही है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के अंदर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट था, तो उन्होंने नाम की सीक्वेंस को चेंज कर दिया, ठीक है. इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर था, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स के अंदर, दरहम के अंदर, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स, ठीक है. अगर आप उस लिस्ट के अंदर वो 8 प्रोग्राम शामिल हैं और आप ऑब्वियसली अगर आप सेम प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपने एक ऐसे के अंदर कुछ चीजें ट्विक करनी है, ठीक है. वो आप चेंज करके, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने हालांकि ज्यादा प्रोग्राम में नहीं किया, बट आई थिंक आई गॉट लकी कि आई गॉट सिलेक्टेड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट. बट मेरे ख्याल से अब मैं सब लोगों को जिनको भी मेंटोर कर रहा हूँ मैं उनको कहता हूँ कि आप इतने ढेर सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, क्योंकि एज फौजिया सेड के नहीं आपको पता होता कि एक साल आपने सेम एसेज यूज किए हैं,
उन्होंने आपको बुला लिया, अगले साल उन्होंने नहीं बुलाया, तो इसके अंदर Yes. मतलब अब मैं खुद कुछ सिलेक्शन कमेटीज का हिस्सा हूँ कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, तो वहाँ पे हम बहुत से फैक्टर्स को देखते हैं. वी आर नॉट जस्ट ओनली सीइंग द एसे स्ट्रक्चर या एसे का कंटेंट. हम देखेंगे कि वो कोटा कितना है, ठीक है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं है. हो सकता है कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स प्रायोरिटाइज कर रही हो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर उस बंदे को जिसका एक्सपीरियंस क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर है फॉर इंस्टेंस, अगले साल उन्होंने वही चीज अप्लाई मे बी नहीं करनी, ठीक है. हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो प्रायोरिटाइज कर रहे हो एक बंदे को जिसका एक्सपीरियंस जो है वो फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंट के ऊपर है, जेंडर और एनवायरमेंट के अंदर है, या डिजास्टर एनवायरमेंट के अंदर है, ठीक. तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज जो है वो जाके करेगी, कनेक्ट करेगी पढ़ने वाले के साथ जो आपने जिसने आपको सिलेक्ट करना है. तो अप्लाई फॉर एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल, जो कि कॉमनवेल्थ की बेस्ट चीज है. और या दैट्स द प्रोसेस. लाइक आई थिंक आई वेंट लॉट अबाउट एक्सप्लेनिंग दिस, बट क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जब मुझसे भी लोग रब्ता करते हैं तो दे ऑलवेज से कि अब हमने इधर अप्लाई करना है, इधर अप्लाई करना है, ठीक है. जनरली आप यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर ये है कि क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, तो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए. सो आई थिंक या दैट्स द प्रोसेस. लाइक मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था. हाँ फौजी, आप कुछ ऐड करना चाहती? जी बिल्कुल. अच्छा, शारिक जो ऐसे का बोल रहे थे वो मैं उसको बताऊं. मैंने HEC के अंदर सेम ऐसे सबमिट किया था. मेरा कॉमनवेल्थ के एसेस काफी डिफरेंट थे जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सबमिट किए थे. सो अगेन सिंस शारिक ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कॉमनवेल्थ शेयर, आई विल गो अबाउट दैट विद कॉमनवेल्थ मास्टर्स. सो उसमें ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन देते हो HEC में और दूसरी एप्लीकेशन आप देते हो कॉमनवेल्थ में. आप दोनों एप्लीकेशंस एक साथ सबमिट करवाते हो और आपको जो है ना डेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसमें, जो मैंने नोटिस किया था. क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रही थी, आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक राइट नाउ, जब मैंने अप्लाई किया था तो कॉमनवेल्थ की जो डेडलाइन थी वो पहले थी HEC की डेडलाइन से. तो आपको ये चीजें जो है ना थोड़ी देखनी पड़ती है. ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक आध वीक का डिफरेंस होता है. सो HEC में अब ये होता क्या है कि HEC आपको सिलेक्ट करती है, कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है. आई थिंक दे सेंड 3 नेम्स फॉर 1 पोजीशन और फिर उसमें से कॉमनवेल्थ जो है वो एक बंदे को चूज करती है. सो अब उसमें ये होता है कि पहले आप अगेन HEC कॉमनवेल्थ दोनों आप साथ अप्लाई कर रहे होते हो. HEC के अंदर जब मेरा वक्त था तो आई थिंक उसमें हमें एक ऐसे देना था, उन लोगों को एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना था. और कॉमनवेल्थ के अंदर एज शारिक सेज, आई थिंक कॉमनवेल्थ मास्टर्स और कॉमनवेल्थ शेयर की सेम ही जो है ना वो आपके एसेज हैं, उसमें काफी ज्यादा एसेज होते हैं, बहुत सारे वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बारे में, लाइक फ्यूचर प्लान्स आपके पूछते हैं. सो एक जो मैं टिप दूंगी जो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही थी सेकंड अटेम्प्ट में, वो ये है कि आप सिर्फ जो है ना अपने बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, आप ओवरऑल जो है ना जनरल आप एक बात कर रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल पे. एंड इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अबाउट योर ओन कंट्री, इट कुड बी लाइक अबाउट like the whole continent as well. और उसमें जब आप ये चीजें लिख रहे होते हो तो आप उसमें जो है वो कॉन्क्रीट नंबर्स दो. आप जाके थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपके कंट्री के अंदर कौन से ऐसे जो है प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है और आपके मास्टर्स करने के बाद आप किस तरह उन प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सो इट्स लाइक मच डीपर इन दैट रिगार्ड रादर देन आप ऊपर सरफेस लेवल पे करो. तो आपको बहुत अंदर जाकर जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, डिफरेंट प्रोग्राम्स आप निकाल के लाओ कि ओके आई डोंट नो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक सर्टेन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कर रही है तो आप किस तरह उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सो इस तरीके से होता है. सो आप ये दो ऐसे सबमिट करवाते हो. सो HEC सबसे पहले आपका टेस्ट लेती है. सो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, दिस वाज बैक इन आई थिंक 2019 और 2020, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक इट वाज 2019. तब वो आपका ऐसे देख के इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे. तो वहां पे थोड़ा सा जो आई थिंक मे बी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे थे, तो इस वजह से मेरा नहीं हो सका था. सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्या कर रहे थे, उसके बाद से ऑनवर्ड्स उन्होंने ये आई थिंक स्ट्रैटेजी ली है, वो आपको बुलाते हैं हेड टेस्ट के लिए. और अगर उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है उनका, आई थिंक 70+ आपके मार्क आना चाहिए, तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. अब हेड टेस्ट जो होता है आपका, वो आपका क्वाइट सिमिलर होता है GRE से, और बट ईजियर होता है GRE के मुकाबले में. सो अगर आपको आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी जो है ना वो IQ का टेस्ट भी लेते हैं. सो आई डोंट नो हमारे लिसनर्स को ये चीज पता होगी, पर आप जब आर्मी के या एयरफोर्स के टेस्ट के लिए जाते हो तो वो एक IQ टेस्ट लेते हैं. हेड का टेस्ट जो है ना IQ सेक्शन उसका pretty सिमिलर होता है. सो आप लाइक अगर गूगल करो तो बहुत सारे वो टेस्ट आ जाते हैं, आप जो है ना वो ट्राई कर सकते हो.
अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। सही है, इंटरव्यू आपका फुल एक पैनल इंटरव्यू होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑफ कोर्स वो आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स पूछेंगे, आपकी जो आपने करंटली क्या-क्या किया हुआ है। सो यू नीड टू बी वेरी सर्टेन अबाउट योर फ्यूचर। आपने रिसर्च करनी है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या रिसर्च करनी है, आप उनको ये एक्सप्लेन कर सको। अगर आपने फॉर इंस्टेंस बिजनेस सेक्टर में जाना है तो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिसर्च कर चुके हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हो। ये नहीं कि आप उन्हें हवाई प्लान्स बताओ। Yeah. मतलब कुछ लाइक एक सॉलिड बेस होनी चाहिए आपकी बात की, ठीक है। Hmm. उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो जो है रेकमेंड कर देते हैं कैंडिडेट्स को। फिर उसके बाद आपकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो आपने सबमिट की थी वो जो है रेलेवेंट होती है। इसमें मैं Hmm. 2 टिप्स दूंगी। जब आप कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ वो आपसे पूछते हैं कि आपने आईएलटीएस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, और दूसरी चीज होती है वो ये पूछते हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है या नहीं किया। आपके पास ऑप्शन होता है आईएलटीएस बाद में दे सकते हो, और सेम आपके पास ऑप्शन होता है आप यूनीज में बाद में अप्लाई कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड आप अपना आईएलटीएस दे के रखो और आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रखो, या अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आया यूनिवर्सिटी की तरफ से एटलीस्ट आपने एप्लीकेशन दी हुई है। उससे क्या होता है उनको ये सिग्नल जाता है कि ठीक है इस बंदे ने आईएलटीएस किया हुआ है, इसके इतने बैंड्स आए हुए हैं, तो इसको जो है ना आसानी से वीजा मिल जाएगा, इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। सो जो अनसर्टेनिटी होती है उनके एंड पे वो खत्म हो जाती है। अगेन Hmm. सेम फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये होता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उनके पास ये सिग्नल जाता है ओके, बोथ एचईसी एंड कॉमनवेल्थ दोनों के पास ये सिग्नल जाता है ओके इस बंदे के पास ऑलरेडी एक्सेप्टेंस लेटर है। तो वो बात खत्म हो जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं बट आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, तो देन दे हैव टू लाइक रीडू द होल प्रोसेस एंड गो टुवर्ड्स अनदर कैंडिडेट, जो कि टाइम वेस्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड गेट योर IELTS sorted, get your university admissions sorted. Mostly UK universities के admissions free होते हैं। UCL में थी application fees, but you can always like get it refunded after you get the scholarship. तो ये है कि Yeah. like get your IELTS done, apply for the universities, just take some risk. I would say like my audience is lucky because we have different backgrounds. I think Fauziya ने apply किया था Commonwealth Masters में and Sharik applied in shared. So बहुत Yeah. detailed में explain कर दिया दोनों ने दोनों चीजों को। अब मैं ये जानना चाहूँगा like again dumb question कि who can apply, like any background student can apply और medical students apply कर सकते हैं नहीं कर सकते, or is there any engineering sort, or are they always looking for लिस्ट को अपडेट करते हैं each year and they are looking for some different backgrounds like engineering के ऊपर फोकस करेंगे इस बार, social sciences के ऊपर, और there is no like anyone can apply? Yeah, Okay. I think yeah. ये शारिक आपसे स्टार्ट कर Yeah. लेते हैं। Yeah. Yeah, Go ahead. I was about to. I was sort of like a student. I was raising my hand because for the last question, I didn't added कि कौन लोग apply कर सकते हैं या नहीं, because ये काफी लोग पूछते हैं। सबसे पहला जो है वो query उनकी होती है कि like perception ये होती है कि पता नहीं आप कोई बहुत special species होगे कि आपको स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। सो दे आर लाइक कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। कॉमनवेल्थ के अंदर आपको शिवनिंग के अंदर जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कॉमनवेल्थ शेड के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर है तो वो ऑब्वियसली आपका केस स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट जो मेरा पूरा कोहोर्ट था उसके अंदर देयर वाज अ वैरायटी ऑफ पीपल, ठीक है, कि हमारे वो भी लोग थे जो बिल्कुल न्यूली ग्रेजुएट थे जिनका कोई एक्सपीरियंस एज सच नहीं था, लाइक प्रॉपर्ली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मुझ जैसे लोग थे जो मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसे लोग थे जिनका सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से आपको एक तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका वो हो। जीपीए के अंदर भी आई थिंक मैं कोई थ्रेशोल्ड नहीं देना चाहूँगा बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक कि आपको बहुत, क्योंकि जब मैं अपनी सीवी अगर किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उनका पहले ये होता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब तकरीबन 3.85 है इसलिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, और वो पहले ही डिस्करेज हो जाते हैं कि नहीं हमने नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इन माय कोहोर्ट लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैड लाइक 3 जीपीए के साथ 3.1 के साथ भी उनको स्कॉलरशिप मिली है। सो आपने ये चीज़ नहीं सोचनी। थर्ड जो है, जब आपने अप्लाई भी करना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सभी जो प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई आपने कर डालना है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो उस साल वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। ठीक, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि नहीं ये मतलब हम जैसे अगर 2 यूनिवर्सिटी हैं तो वो कहेंगे कि नहीं दिस इज लाइक वे बियॉन्ड आवर रीच, ठीक है, मेरा इतना जीपीए नहीं है तो नहीं। आपको कुछ नहीं पता। लेट देम बी द जज ऑफ दीज थिंग्स के जज। वो है या नहीं है। ठीक, इन माय केस लाइक मैंने 3 जगह अप्लाई किया था। ईस्ट एंग्लिया विच इज लाइक
अ गुड यूनिवर्सिटी, बट अगर आप कंपेयर हम्म, करो लीड्स और ब्रिस्टल के साथ तो मतलब रैंकिंग के अंदर वो उस तरह से फॉल नहीं करती है। सो हम्म, चांस लाइक लॉजिक तो ये बनती है कि एंग्लिया में क्योंकि कंपटीशन हो सकता है कम हो, लाइक यू नो हम्म, ऑन पेपर आप ये कह सकते हो, तो मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ कि उल्टा जो है वो मुझे ईस्ट एंग्लिया से स्कॉलरशिप नहीं मिला और मुझे 2 रसेल ग्रुप यूनिवर्सिटी से मिल गया। इसी तरह से एक मेरा हम्म, इंडियन स्कॉलर था लास्ट कोहोर्ट में, जिसको आई थिंक दरहम ने रिजेक्ट किया था इवन फॉर एन एडमिशन। उन्होंने एडमिशन भी नहीं दिया। हम्म, ही गॉट हम्म। सिलेक्टेड फॉर ऑक्सफोर्ड। ठीक। सो Oh, इस nice. हिसाब से जो है वो यू नेवर नो कि ऑड्स क्या हम्म, है। सो अप्लाई फॉर एज okay. मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल। सो वहां पे वो चीज नहीं है। सेकंड, अब हम्म, जाते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट वाज दैट, कैन यू रिपीट? हाँ, like who can apply? कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एनी सोशल साइंसेज बैकग्राउंड और मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते फॉर दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप? और आई थिंक कॉमनवेल्थ शेड के अंदर क्योंकि प्रोग्राम स्पेसिफिक है, तो आपने हम्म, उस प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफिकली अप्लाई करना है। जाहिर है कि आपने इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है, क्योंकि हम्म, आपको हो सकता अगर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप दे भी देती है, अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती, तो अल्टीमेटली आपने पढ़ना तो यूनिवर्सिटी में है। तो इसलिए जो है वो आपको वो yes. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको मीट करना ऑब्वियसली ज़रूरी है। बाकी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अब मतलब हर जगह पे there is a focus on multidisciplinarity, interdisciplinarity, हम्म, cross disciplinarity, you know all those yes. terms. So उसके Those अंदर terms. आप अगर आप लॉजिक बना सकते हो, ठीक है, जैसे मेरा शुमाल जुनूब है, अगर मैं शुमाल जुनूब को Yeah. ब्रिज कर सकता हूँ, तो फिर Yes. आई हैव ऑल द यू नो आई कैन क्लेम कि मैं आई हैव द हम्म, राइट टू, आई डिजर्व दिस यू नो प्रोग्राम और स्कॉलरशिप। yeah. अदरवाइज जो है वो इस तरह से कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। आई थिंक फौजिया आपको हम्म। शायद और एक्सप्लेन कर पाएंगी। फौजी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर के कौन से बैकग्राउंड के लोग यूजुअली अप्लाई करते हैं कॉमनवेल्थ में, और एनी पर्टिकुलर बैकग्राउंड दैट आर मोर सिलेक्टेड इन कॉमनवेल्थ? यस, अगेन मैं कहूंगी कि ये बहुत मेन पार्ट है जब आप अप्लाई हम्म, कर रहे हो किसी स्कॉलरशिप के लिए। सो यू नीड हम्म, टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आप जो है ये चीज डिजर्व करते हो। ये बहुत मेन पार्ट है एप्लीकेशन के अंदर, हम्म, बिकॉज दैट वुड नॉट ओनली हेल्प यू राइट थिंग्स दैट यू वुड हैव नॉट कंसिडर्ड बिफोर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हम्म, होती है जो इंसान बहुत अच्छी कर रहा होता है पर वो भूल जाता है लिखते हुए, क्योंकि वो उसकी नजर में इतनी अच्छी नहीं होती है। सो अगेन हम्म, एवरीवन कैन अप्लाई, दे शुड जस्ट हैव a confidence within themselves कि वो जो है ये चीज को डिजर्व करते हैं, और उस हम्म, कॉन्फिडेंस को लेके वो अपनी एप्लीकेशन लिखें। And as Tariq said, apply for as many programs as possible, as many scholarships as possible. थोड़ा हम्म, बहुत tweak करना पड़ता है। अब मेडिकल स्टूडेंट्स की जब हम बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड्स में नहीं अप्लाई कर सकते। सो दे कांट हम्म, अप्लाई टू बिकम लाइक लेट्स से अ डॉक्टर और अ सर्जन और डॉक्टर। व्हाटएवर, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ। हाँ, लेकिन हम्म, मेडिकल स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि जैसे आउटसाइड ऑफ मेडिसिन but related to हम्म, medicine. I don't know how to explain this, but जैसे या public health, बायोटेक्नोलॉजी स्टफ, या बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, हम्म, ऐसी चीज़ों में वो अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे ये होता है कि in order for you to qualify to be a dentist or a doctor or a surgeon, you have to give certain tests. और हम्म, उसके बाद जो है ना, मतलब उनका मेडिकल फील्ड्स का जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। सो हम्म, आप एज डॉक्टर बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए, डेंटिस्ट बनने के लिए नहीं कर सकते हो स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ के अंदर। लेकिन हम्म, अगर आप डॉक्टर हो और आप पब्लिक हेल्थ में जाना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने कहा आप वो कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितनी भी फील्ड्स है, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो, सोशल साइंसेज ले लो, इवन आर्ट्स, इस टाइप की फील्ड्स में आप pretty much हर जगह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जैसे शारिक ने भी मेंशन किया था कि उनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, जिस सर्टेन एरियाज हैं जो वो मीट करना चाहते हैं। तो हम्म, आपको मतलब किसी तरह उनके साथ जो है ना वो रिलेट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो आपको जो है ना उसकी लाइक फॉर इंस्टेंस आपकी कोई ऐसी फील्ड है जो कि आपको एट दैट पॉइंट लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही बाहर की है, ये तो कुछ कुछ बन ही नहीं रहा है, तो आपको जो है ना उसको किसी तरीके से जो है ना मर्ज करना पड़ेगा। सो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप उनकी जो है ना बेस्ट सोर्स होती है उनकी वेबसाइट्स, उनकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाओ, वहां जाके पढ़ो, उनके कोर्सेज पढ़ो, और इसके अलावा उनकी जो है ना जो उन्होंने रिसर्च वगैरह की हुई है ना आप वो पढ़ो। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस देखोगे जो आपको पढ़ के लगेगा अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इस तरह भी रिलेट हो सकता है। तो वो हम्म, चीज़ जो है ना बहुत बहुत हेल्प करती है। लाइक अगर जब आप अप्लाई कर रहे हो, आप सबसे पहले जो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना ऑलरेडी, लाइक देयर हम्म, इज
like so much information on their websites, universities की websites में. आप उधर जाके पढ़ो, आपको बहुत चीजें, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे. वो सारे लाइक आप अपने ऐसे लिखने से पहले आप अपना आपने सोच लिया ना मैंने अप्लाई करना है, अब आप कंफ्यूज है यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ, आप जाओ उनकी वेबसाइट्स पे और आप अच्छी तरह थोड़ली रीड करो, लाइक लगाओ हफ्ता लगाओ उसको सब कुछ पढ़ने में अच्छी तरीके से, लाइक प्रॉपर बैकग्राउंड उसकी रिसर्च करो, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आप एक जगह लिखते जाओ और उसको यूज करके आप अपने एसेज लिखो. दैट्स लाइक वेरी हेल्पफुल जो मैंने नोटिस किया है. Yeah. And no, I want to know about like what are the benefits of Commonwealth scholarships and how is it going back to Pakistan after studying in the UK? And if you want to come back into in the UK, like both of you guys have done your masters on Commonwealth scholarship, and both of you are in the UK right now. And I want to know because बहुत से students का ये concern होता है कि हमने पाकिस्तान वापस नहीं जाना. I have to be fair because पाकिस्तान में students वापस नहीं जाना चाहते. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाइक क्या स्टाइपेंड मिलता है आपको, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है नहीं होती, ट्यूशन फी एंड ऑल दैट, क्या क्या बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं? सो शारिक आपसे बेनिफिट से स्टार्ट कर लेते हैं, देन फौजिया विल ऐड एंड देन वी कैन प्रोसीड. Sure. Yeah, it's a fully funded scholarship, so that is the best part. क्योंकि आपको कुछ भी देने की, मैंने सिर्फ जो है थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन प्रोसेस और थ्रू आउट द ईयर इवन आई जस्ट अप्लाइड फॉर आइल्स के जो है वो आपने फी खुद देनी है, दैट्स इट. बाकी द फी इज गोइंग टू बी फुली कवर्ड. जो आपके वीजा के चार्जेस होते हैं इट्स गोइंग टू बी नलिफाइड, लाइक जीरो हो जाएगा वो. ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको इनिशियली आई थिंक आपको 20-25,000 देने होते हैं टीबी के टेस्ट के, ट्यूबरकुलोसिस के वो टेस्ट होता है यूके आने के लिए, विच इज वो भी जब आप यूके एक दफा आते हैं तो उसके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं. कॉमनवेल्थ इज वेरी जनरस इन दैट वे कि वो आपको गर्म कपड़ों के पैसे तक देंगे. लाइक आई यूज्ड टू गेट 500 pounds for like warm clothing allowance, so which is like very fancy. इसके अलावा जब जो भी आपका कॉमनवेल्थ के 2-3 इवेंट्स होते हैं लंदन में जो कंपलसरी अटेंड करने होते हैं, सो दे आर गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट एज वेल, कि आप जो है ट्रेन के टिकट्स वगैरह आप उससे भी कवर कर सकते हैं. इसके अलावा इतने भी वो पैसे देते हैं जो आपके इस्तेमाल भी नहीं होते, यानी कि फॉर मी लाइक दे यूज्ड टू गिव लाइक 200 pounds फॉर थीसिस अलाउंस, और मेरे थीसिस के अंदर आई बॉट लाइक सॉफ्टवेयर फॉर 25 pounds आई गेस, जो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड नहीं था. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नो आई यूज्ड. दे विल जस्ट गिव यू इन माय पीएचडी नाउ, यू हैव टू क्लेम देम कि मैंने ये खर्चा किया, मुझे इसके पैसे वापस चाहिए. इन कॉमनवेल्थ वो आपको अन्यवा जो है ना वो दे रहे हैं पैसे, आपको कोई वो नहीं है कि आपने यूज करने हैं नहीं करने. दे आर गोइंग टू यू नो यू कैन यूज देम, और जिस तरह से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो. सो इस हिसाब से मतलब आपको कोई भी, इसके अलावा जो है वो शिवनिंग के अंदर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई गेस कि शिवनिंग के अंदर ये होता है कि आपको कुछ टॉप अप वगैरह मिलता है तो वो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है आके यूके में, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पर वो भी चीज नहीं होती. तो आपको मतलब यू नो इनिशियली आपको होता है ना कि आप कुछ पैसे इधर से देंगे या कुछ भी, सो आप जिस भी मतलब देयर इज गोइंग टू बी नो बर्डन ऑन यू. You can be like totally free, because some people ask me कि you know हम शुरू में you know नहीं दे सकते या something like that, तो वो आपको confuse करने की इसको जरूरत नहीं है. Then इसका benefit जो है वो it's good to have two people from you know common masters and shared, because in shared I guess benefit आपको एक तो obviously you are being part of like you know one of the best institutions in the world. क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऑक्सफोर्ड से लेके लीड से लेके रसल ग्रुप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, दैट्स अ बेनिफिट. सेकंड जो है वो ऑब्वियसली इट्स फुली फंडेड, दैट्स अ प्लस. तीसरी चीज ये है कि आपको बहुत जगह पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो कि आपको जनरली नहीं मिलेंगी. अगर आप खुद फुली फंडेड खुद फंड सेल्फ फंड के ऊपर आ रहे हो तो ऑब्वियसली यू नो देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जो सिर्फ कॉमनवेल्थ के लोगों को मिलती है. जैसे इन माय टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैंने जो वेल की देयर वर लाइक कम्बरलैंड के अंदर जो है वो 2 यू नो रेजिडेंशियल फेलोशिप्स थी जहाँ पे हमें ट्रेनिंग उन लोगों ने दी जो कि आपको जनरली रीच नहीं होती. ठीक है, वी यूज्ड टू लिव इन लाइक इट वाज अ रॉयल रेजिडेंस, क्राउन की शूटिंग हुई थी तो उसका वो जैंगो फैक्टर भी होता है उसके अंदर. ठीक है, तो वो चीज भी आप डाल सकते हो. ठीक है, देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि गवर्नेंस रिलेटेड थे, दे हैड लाइक यू नो यूके पार्लियामेंट के अंदर उनके सेशंस
थे जो कि आम बंदा नहीं उस तरह से नहीं जा अवेल कर सकता। सो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा और जो है ना शशके वाली चीज़ें, जैसे अ लॉट ऑफ माय कोहोर्ट, आई मुझे नहीं अट्रैक्शन उस चीज़ के अंदर होती, बट लॉट ऑफ माय कोहोर्ट फेलोज वर यू लाइक रियली फैसिनेटेड बाय द रॉयल फैमिली, और उन्हें क्वीन देखनी थी। क्वीन तो खैर बेचारी मर गई थी उस Yeah. वक़्त, उन्हें किंग देखना था। तो वो स्पेशल उसके लिए कुछ इवेंट्स थे जो गए और वो Hmm. मिले किंग से एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इन दैट वे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं। ऑब्वियसली अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आपका नेटवर्क कैसे डेवलप होगा, डाइवर्स नेटवर्क, जहाँ पे वो आपको आगे काम आ सकता है। जैसे अब मतलब Hmm. मैंने अल्टीमेटली लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ फेलोज के साथ ही आई प्रेजेंटेड सम ऑफ माय रिसर्च इन येल। अभी एक और ड्यूरिंग दिस मीटिंग मुझे वो मैसेजेस का आ रहा है, वी आर वर्किंग ऑन अ रिसर्च पेपर टुगेदर। सो शी इज लाइक Nice. शी वाज फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम। सो आपकी कोलैबोरेशन ऐसी होती है, आपके नेटवर्क्स ऐसे Hmm. बनते हैं जो कि आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो। आखिरी बात जो पॉइंट है वापस पाकिस्तान आने का, यस, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेवलपमेंटल इम्पैक्ट के लिए है कि आप अपने मुल्क को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कुछ Hmm. लिमिटेशंस हैं जो कि जाहिर है कि जो भी रियलिटी है आई विल पोर्ट्रे दैट। मैं कोई ग्रीनर Hmm. फील्ड वो नहीं Hmm. करूंगा Yeah, बिल्कुल. इसको। सो आप आफ्टर मास्टर्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ और इवन आफ्टर पीएचडी फ्रॉम कॉमनवेल्थ, आप अगले वर्क एक्सपीरियंस के लिए या वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू Hmm. गो बैक टू पाकिस्तान और विच एवर योर कंट्री इज, और वहाँ पे जाके आपको 2 साल कंट्री को सर्व करना है, एंड देन यू कैन अप्लाई। एंड ऑब्वियसली आफ्टर 2 years आपका जो भी PSW वगैरह होता है, आई थिंक 2 साल का ही होता है, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, Hmm. पर आई थिंक वो तब तक एक्सपायर हो चुका होगा। तो आपको जो भी इसके बारे में फौजिया आपको बेहतर गाइड कर सकती हैं, बिकॉज शी हैड Hmm. दैट 2 year गैप। और उसके बाद जो है वो आप करते हो आगे, जाके दोबारा अप्लाई करते हो, सो वो आपका नए सिरे से स्टार्ट होगा। इन माय केस बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ PhD, सो ड्यूरिंग माय कॉमनवेल्थ मैंने आते ही जो है ना स्टार्ट कर दिया था PhD के लिए अप्लाई करना। सो Hmm. मैंने गैप नहीं लिया, मतलब बैक टू बैक मेरा जो Hmm. है वो मास्टर्स के डायरेक्ट बाद PhD। और PhD के अंदर भी आपको PhD अप्लाई करने के लिए NOC लेना पड़ता है, नो Hmm. ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप कहते हो कि जी आपको पूरा Hmm. जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप PhD सिर्फ इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि आपको सिर्फ यूके में रहना है। आपको जस्टिफाई करना Yeah. पड़ता है कि ये PhD कैसे आपका कंट्री के डेवलपमेंटल इम्पैक्ट में, जैसे कि मैं Hmm. बता रहा था कि मैं 3 प्रोजेक्ट्स मेरे हैं जो कि मेरी PhD नहीं है Hmm. पाकिस्तान के बारे में, बट मेरे 3 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के बारे में हैं, जो कि मैं यहाँ से Hmm. पब्लिश करूँगा, तो अल्टीमेटली दे आर इम्पैक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस हिसाब से जो है वो आपको पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि कैसे जो है ये कनेक्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ के साथ, इवन कि अगर आपकी मेरी PhD की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप नहीं भी है, बट स्टिल जो है वो Hmm. मुझे करना है। और एक और PhD के लिए फाइनल चीज़ ये होती है कि आपको फुली फंडेड होनी चाहिए PhD। There was Hmm. one of our cohort fellows from Glasgow, I guess, और वहाँ पे उसकी पार्शियल फंडिंग थी, यानी कि उसको Hmm. 50% PhD मिल गई थी, और 50% वो खुद सेल्फ फंड कर रहा था थ्रू वर्किंग और या Hmm. खुद से। बट उन्होंने कॉमनवेल्थ ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। देन ही वाज लकी कि विद इन सम मंथ्स लाइक उसने एक और जगह अप्लाई किया एंड ही गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। सो Nice. PhD शुड बी फुली फंडेड। अगर आपकी इवन के Hmm. 90% भी फंडेड है तो तब भी जो है वो आपको कॉमनवेल्थ NOC नहीं देगा। और NOC आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो PhD के लिए, तो आपको NOC अप्लाई देना पड़ता है, क्योंकि दे आस्क द क्वेश्चन कि आपका प्रीवियस डिग्री जो है वो फंडेड थी या नहीं थी। Hmm. सो अगर वो ऑब्वियसली भी कॉमनवेल्थ फंडेड थी तो आपको उसका कॉमनवेल्थ से NOC लेना पड़ेगा। तो इन दैट केस इट शुड बी 100% फुली फंडेड। या Yeah. And no, Fozia, would you like to add something on it, like how you have done it? Yeah, so what happened with me was, again, I went to Pakistan, and I would be honest, it was really hard for me to find a job that was worthy of me, if that makes sense. मतलब यानी ऑफ कोर्स आप यहाँ से पढ़ के जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो आपको एक अच्छी सैलरी Hmm. मिलेगी, अच्छी पोजीशन Exactly. मिलेगी जो आपके करियर के साथ अलाइन करेगी। तो वो मेरे लिए Yeah. काफ़ी डिफिकल्ट था। सो मैंने जो है ना अपना एक सेटअप बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज अगेन मेरा हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे अपना बिजनेस करना है। तो Hmm. मेरा जो है वो एम्बिशन था। सो मेरे लिए वो चीज़ आसान थी, मैंने वो अपना पार्ट उसमें करना शुरू कर दिया था। सो सिमिलरली फॉर पीपल, as
शारिक साइड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको फुली फंडेड पीएचडी मिल जाती है, अगेन अगर आपने पीएचडी करनी है वाकई दिल से तो फिर करो। जस्ट बिकॉज यू वांट टू स्टे इन द यूके, आई वुडंट रेकमेंड कि आप पीएचडी करो, बिकॉज जाहिर है वो इंटेंसिव है, वो ड्रेनिंग है, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। और अगर आप कोई चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप यूके में रह लो, तो जाहिर है भाई आप एक हद तक अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, 4 साल नहीं कर सकते हो। नहीं कर So, सकते। ये चीज है। सो अगेन अगर आपको फिर जो है ना मजबूरन आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, और आई वुड से मजबूरन, बिकॉज मोस्टली पीपल जो है ना वो वापस जाना नहीं चाह रहे होते, नहीं तो चाहते। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वहां पे अगेन अब जो 2 साल वाली बात है ना, जब मेरा मेरा था कॉमनवेल्थ, तो Yeah. मैंने अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रीड किए थे, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रीड किया था, मैंने अपना सब कुछ रीड किया था। दे वर ऑलवेज सेइंग दैट आई हैव टू गो बैक टू माय कंट्री, बट दे नोवेयर मेंशन 2 years। तो ये चीज है कि आप ऑफ कोर्स आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस सब बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वीजा तो आपको यहाँ यूके में बैठ के नहीं मिलने वाला, ठीक है, और आपको पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा, सही है। अब पाकिस्तान जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल रही है, तो आपको फिर अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको वो 2 साल का कहीं पे मेंशन्ड है या नहीं है। इस हिसाब से आपको देखना Yes. पड़ेगा, ठीक है। आपको हर हर केस में आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रहना होगा, बिकॉज अगर आप कुछ उसके अगेंस्ट करते हो तो आपको लिटरली सारे पैसे उनको वापस करने हैं, जो कि आई मीन जितने पैसे वो आपको दे रहे होते हैं वो इतनी क्रेजी अमाउंट है कि मतलब यार आपको सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा वो वैसे उनको Yes. वापस करने के Exactly. लिए। पाकिस्तान में। Yes. एग्जैक्टली। सो हमेशा जो है ऑफ कोर्स वो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सो द लीस्ट यू कैन डू इज रिस्पेक्ट दैट एंड मेक श्योर यू फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगेन फिर आप जो है ना अपना आप जॉब ढूंढ रहे हो, वहाँ जॉब ढूंढने की कोशिश करो। there's lots of different things you can apply for United Nations, there's lots of programs going on with the United Nations in Pakistan, आप उधर अप्लाई कर सकते हो। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हो। आप इवन अब पाकिस्तान में माशाल्लाह से स्टार्टअप कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप उधर अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टार्टअप्स यूजुअली पे गुड बिकॉज दे हैव फंडिंग, सो आप ये कर सकते हो। बट अगेन अगर आपको लाइक पक्का पूरा मतलब यूके वापस आना है, तो फिर ये है कि आप जो है वो डिफरेंट कंपनीज को रीच आउट करो। व्हाट आई डिड वाज आई वाज देयर फॉर 2 years, और मैंने 2 साल इसलिए किए थे कि इवन तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे 2 साल मेंशन नहीं था, एक तो इत्तेफाकन भी ये थोड़ा सा हो गया था, और दूसरा जो है मैंने सोचा कि यार शेवनिंग 2 साल बोलती है ना, चलो 2 साल तक का वेट कर लो जस्ट टू बी श्योर। और तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था, और फिर वहां से मुझे इंटरव्यू मिला था, और मैंने जो है ना फर्दर फिर पूरा प्रोसेस हुआ था। सो आपको जो है ये करना पड़ेगा ना। द थिंग इज के अब थोड़ा सा अच्छा, जब मुझे जॉब मिली थी तब यूके के वीजा के जो क्राइटेरिया था वो बहुत मुख्तलिफ था। अब उन्होंने वो चीज़ काफ़ी चेंज कर दी है। तो अब तो वो ये बोलते हैं आपको कि अगर आपको वर्क स्पॉन्सरशिप चाहिए तो सारी कंपनीज को एक स्पेसिफिक आपको सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि आप ग्रेजुएट लेवल पे नहीं मिल सकती है। सो एंड देयर इज दिस फैक्टर कि अब जो है यूके में जॉब ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर कोई आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सोच के अप्लाई करो कि यहाँ आप मास्टर्स करोगे, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सेल्फ डेवलपमेंट की, जैसे शारिक ने मेंशन किया, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी इन द यूके, आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप, आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग क्रेजी मैंने यूके में ही रहना है, मैंने यूके में ही रहना है। आप वो सारी क्वालिटीज अपनी सीखो, यहाँ से आप जितने कनेक्शंस बना सकते हो, जितना कुछ सीख सकते हो वो सीखो। आप वो पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी अप्लाई कर सकते, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट अदर कंट्रीज एज वेल। आप मिडिल ईस्ट जा सकते हो, आप यूरोप में जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अब स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आप यही चीज़ अप्लाई कर सकते हो। एंड वंस यू हैव इनफ एक्सपीरियंस कि आपको वो सैलरी ऑफर की जा सकती है, आई थिंक इट्स £43,000 नाउ, तो ईयरली सैलरी आपको 43,000 चाहिए होती है यूके वर्क वीजा के लिए। सो वो आप करो, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। सो yeah, please don't take shortcuts. Yeah. No, taking forward from here, like, can I live anywhere else instead of Pakistan? For example, अब मैं ग्रेजुएट हुआ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर यूके से, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस जाके नहीं रहना चाह रहा, मुझे जर्मनी का वीजा मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर एग्जांपल, कैन आई लिव इन जर्मनी, और इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन के मुझे पाकिस्तान ही जाके वापस रहना है इन द कॉन्ट्रैक्ट और समवेयर?
ऐसा आई गेस कोई रूल नहीं होता क्योंकि हम्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि आपने अपनी कंट्री को सर्व करना है हम्म हम्म जहाँ तक मुझे याद है हम्म इसके अलावा कोई स्पेसिफिक नहीं है बट आई अच्छा थिंक कि अगर आप मैं यही बात कहने वाला था कि आप लिमिटाइज मत कर लो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो हम्म यूके तक क्योंकि पाकिस्तान से अप्लाई करना मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या चीज़ें आउट ऑफ रीच होती हैं जब आप यूके में हम्म हैं आप दुनिया के लिटरली मिडिल में बैठे हुए हैं तो आप यस कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप आपके पास आपकी ईमेल एड्रेस आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का होने वाला हम्म है ठीक है और आपके पास जो है वो यूके का एक्सपीरियंस है यूरोप के अंदर मैंने सुना है कि यूके की यूनिवर्सिटीज को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ठीक है तो करते आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपने सिर्फ यूके में रहना है या कुछ अब मेरी पीएचडी हम्म के अंदर क्योंकि फंडिंग टाइमलाइन ऐसी थी कि मैंने आपको मीटिंग से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने हम्म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को प्रायोरिटाइज किया यस एक शिवनिंग फेलो था कॉमनवेल्थ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने शिवनिंग के होते हैं शिवनिंग का तो मतलब हम्म कॉन्ट्रैक्ट में बहुत चीज़ें डिटेल में बहुत ज़्यादा हम्म कॉमनवेल्थ के अंदर कुछ ऐसे बातें होती हैं जो कि आप उसको खुद इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से कॉमनवेल्थ लूप वो होल्स शिवनिंग वाले नहीं आपको वो करते तो वहां पे मतलब मेरा शिवनिंग फेलो एक क्लास फेलो था सो ही स्टार्टेड हिज पीएचडी इन स्पेन ठीक है इसी हम्म तरह से हिना को मैं जानता हूँ शी इज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट शी इज डूइंग पीएचडी इन शी वाज शिवनिंग स्कॉलर इन माय बैच शी इज डूइंग दैट फ्रॉम सोआस इसी तरह से हम्म मेरी एक alumni थी who actually mentored me for the PhD she is doing that from New Zealand so in that हम्म case diversify your options कि आप जितना ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर सको इस तरह का कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं है कि इधर ही हम्म आपने आना है या फिर आप हम्म कहीं और नहीं जा सकते सही 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 ठीक है फौजी आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसके ऊपर यस मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट अब मे बी उन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया लेकिन मुझे जहाँ हम्म तक याद है उसमें काफ़ी उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई थी कि हमें वापस पाकिस्तान जाना है और जाकर अपने मुल्क को हम्म सर्व करना है राइट सो लाइक दिस वापस पाकिस्तान जाने वाली जो बात है ना दैट जस्ट मेक्स मी थिंक कि आप फिर अगर वीज़ा या जो भी कुछ अप्लाई कर रहे हो ना तो आप थ्रू पाकिस्तान करो रादर देन फ्रॉम विद इन हम्म यूके दैट इज जस्ट लाइक अ या प्रिकॉशन आप ऑफ कोर्स थ्रू हम्म यूके कर सकते हो बट देन यू माइट बी ब्रेकिंग दैट टर्म बिकॉज वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है but they do explicitly say हम्म that you have to return back to your country. So you go there and then from there you apply your visa rather than just applying from within the UK because I mean you never know. Like या legal terms को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है ऐसा. जा सकता है एग्जैक्टली अब मैं थोड़ी सी लाइक प्रोसेस के ऊपर दोबारा अगेन बात करना चाहूंगा और यू guys have explained in very detail but I want to mention particularly essays like how people should go for essay what should be their approach and how they can improve their profile for example if someone has इतना अच्छा CGPA नहीं है अराउंड 3 और 3.2 और समथिंग लाइक दैट तो अपनी प्रोफाइल को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट से कुछ पोर्टफोलियो से और किस तरह से और क्या एसेस की अप्रोच होनी चाहिए कॉमनवेल्थ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता मेरे ख्याल से आई कैन स्टार्ट विद फौजिया एंड देन वी कैन प्रोसीड विद शारिक Okay. So या जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं ना तो आपको उनको ये नहीं बताना कि आपने क्या क्या किया है आपको उन्हें ये बताना है कि आप में कौन कौन सी स्किल्स हैं और किस वजह से हैं क्योंकि वो आपको इस बेसिस पे नहीं रखेंगे ओ अच्छा यार इसका ना 3 साल का एक्सपीरियंस है चलो इसको रख देते हैं वो ये देखना चाह रहे होते हैं अच्छा 3 साल का एक्सपीरियंस है बंदे ने ये चीज की है उसने सीखा क्या है उससे ठीक है वो क्या चीज उसने सीखी है और उसको फर्दर कैसे उसने इम्प्लीमेंट किया है ठीक है तो मतलब आपको ये दिखाना होता है और अब इसका रिवर्स भी है कि यानी आप में कौन सी ऐसी स्किल है जिसको आपने अपनी जॉब के अंदर या आपने किसी लीडरशिप पोजीशन के अंदर या किसी भी वे में इम्प्लीमेंट किया इवन इन योर पर्सनल लाइफ इट डजंट हैव टू बी स्पेसिफिकली कि आपने रिसर्च की है या आपने कोई जॉब की है आप कोई अपना एक पैशन प्रोजेक्ट है आपका छोटा सा आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं ठीक है यूके की एक चीज है जो मुझे बड़ी पसंद है पाकिस्तान में अक्सर जो है ना आप छोटी छोटी जो चीजें कर रहे होते हैं ना छोटे छोटे काम जैसे आपने आई डोंट नो मोहल्ले के बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया कि गरीब है यार चलो मैं इनको पढ़ा देता हूँ पाकिस्तान में शायद वो ना उस चीज को इतना ज्यादा नहीं लेंगे वो कहेंगे हाँ ठीक है यार पढ़ा दिया ठीक है छोटी मोटी बात है बट यूके में इन चीजों को जो है वो बहुत अच्छे वे में दिया देखा जाता है यानी कि आपकी इवन कोई छोटी सी भी चीज है ना जिसमें आप दिखा रहे हो कि भाई आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो वो उस चीज को भी बहुत बड़े अंदाज में लेते हैं वो उसको डिसरिगार्ड नहीं करेंगे सो व्हेन यू आर राइटिंग योर एसे आप जो है ना एक आप बेसिक चीज कर सकते हो आप जो है सारी स्किल्स ढूंढो जस्ट गो टू अ बेसिक सर्च जाके देखो कि आपको कौन कौन सी मेजर स्किल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है
ये स्किल्स आपको जो है ना, अगर आप आई डोंट नो किस जगह पे, लेकिन कॉमनवेल्थ के अंदर ही जो उनका इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसी के अंदर अगर आप जाके देखो, आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और इवन उनके क्वेश्चंस को भी अगर आप डीकोड करो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि वो कौन सी स्किल्स ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो स्किल सारी इकट्ठा करो, फिर उसके बाद आप जो है ना अपना थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो कि यार मैंने अपने ना पिछले जिंदगी के जो है ना 4-5 साल में क्या क्या किया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज में पार्ट लिया है, आपने लाइक आई डोंट नो, मे बी आप अपनी क्लास के सीआर हो। एज अ सीआर आपके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मतलब आप मे बी उस वक्त इतना ज्यादा उसको ना सोच रहे हो, लेकिन आपने किया है ना, इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीडरशिप पोजीशन। या और इसके अलावा आपने और किस तरह कम्युनिटी को सर्व किया है, आई डोंट नो, मे बी आपने कोई एक लोकल चैरिटी के साथ काम किया है, या इवन आई डोंट नो आपने अपनी सोसाइटी के साथ जाकर कहीं दरख्त लगाए हैं। ये इवन छोटी छोटी चीजें, आप बेसिकली वो सारी लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो जो आपने पिछले अपने 4-5 साल में लाइफ के किया है। मैं अच्छा कोशिश करो, अगर आपके पास उनके प्रूफ्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि दे डोंट रियली आस्क फॉर प्रूफ्स। यस क्योंकि आप जिस तरीके से उसको लिख रहे होगे ना, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा इंसान कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। यानी वो लोग बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं, उनको अंदाजा हो जाता है कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। तो ये भी नहीं कि मतलब आप झूठ चीजें लिखना शुरू कर दो, बट यस ये वो सारी चीजें आप अपनी इकट्ठी करो, उसको रिलेट करो क्वेश्चन के साथ। एसेज में जो सबसे मेन चीज होती है, आप क्वेश्चन को कितना समझ रहे हो। अगर वो आपको जो है ना ईस्ट के बारे में पूछ रहे हैं और आपने वेस्ट का काम किया है, आप वेस्ट का लिख के आ जाओगे, वो आपको नहीं देंगे स्कॉलरशिप। ठीक है, आपने वेस्ट का काम किया है, उसको किसी तरह ना ईस्ट से रिलेट कर लो कि भाई इससे इस तरह ये चीजें हुई थी, और आप उसको लिख लो। अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आप अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा को रिलेट करो डेवलपमेंट के साथ जो आपकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी हो रही है, बिकॉज इट इज अ डेवलपमेंट फोकस्ड स्कॉलरशिप। सो यू नीड टू शो देम दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री, और आप कैसे उसको को रिलेट कर सकते हो। सो आई वुड से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रीवियस स्कॉलर्स है ना, आप उनसे जाके बात करो, आप उनसे जाके जो है ना मशवरा लो। आप उनसे पूछो कि अगर वो आपको अपने सैंपल्स दे सकते हैं ऐसे इसके, आप वो सैंपल्स लो, उनको पढ़ो, देखो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। अगेन हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज होता है लिखने का, तो डोंट ट्राई टू कॉपी देयर स्टाइल, जस्ट सी कि उन्होंने क्या क्या चीजें अंदर मेंशन की हुई है। And this is I don't want to sound rude, but I just want to highlight this thing कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे जो है ना बहुत ही ज्यादा ना बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। अब but knowledge I'm not like a president or prime minister, but I am still busy. yeah So yes exactly मतलब मैं अगर कोई आके मुझसे बहुत बेसिक सवाल पूछेगा ना, मैं आंसर तो दे दूंगी, लेकिन यार थोड़ा सा ना खुद अपनी रिसर्च करो, ठीक है। yes देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन आउट देयर, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी जो है ना वीडियोस है, जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं, ऐसे और yes भी लोगों ने बनाई हुई होंगी। रीड थ्रू यूनिवर्सिटीज वेबसाइट्स, रीड थ्रू कॉमनवेल्थ वेबसाइट्स, वहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पहले कोशिश करो, आप अपनी रिसर्च करो, ठीक है। फिर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है, आप स्कॉलर्स के पास आओ, आप उनसे पूछो, आप जो है ना उनसे उनके सैंपल्स मांगो। आप इवन इवन आई डोंट माइंड इट जब लोग मेरे पास आते हैं अपना ऐसे लिख के बोलते हैं आप प्लीज रिव्यू कर दो, सो आई वुड रिव्यू इट। बट अगेन कोई अब मुझे कोई जना बिल्कुल ही बचकाना सा ला के ऐसे दे देगा, सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक it's माय time टाइम इज waste yeah इम्पोर्टेंट एज वेल। तो मतलब आप अगर आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च की हुई होगी तो आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे ऐसे लिखना है। So there is even अगर आप scholars से samples नहीं ले रहे हो, there are a lot of samples out there on different like websites and stuff. आप उधर से जाके ले सकते हो ना. So yeah, Shark want to add something more. Yeah, I think He needs a Shahid just break. muted himself. Yeah, he Yeah. needs a short break. So yeah, इसके अलावा I think स्टूडेंट्स को कुछ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हम यूके में आते हैं तो क्या हम लाइक प्रॉब्लम तो नहीं है लाइक बट दे हैव क्वेश्चंस कि क्या हम अगर हमें स्कॉलरशिप मिल रही हो तो क्या हम पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं या नहीं, ऑल्दो दे डोंट नीड बिकॉज दे आर गेटिंग इनफ मनी, बट दैट्स अ क्वेश्चन दैट दे आस्क। No. ओके आप इट्स नॉट बिल्कुल नहीं कर सकते, इट्स टोटली अगेंस्ट कॉमनवेल्थ। अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे आप आई डोंट नो कोई रिसर्च प्रोग्राम कर रहे हो या ऐसी कोई चीज जो आपके डिग्री से डायरेक्टली रिलेट करिए, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे थी तो मैंने एक समर स्कूल किया था विद इंपीरियल। तो ऐसी चीजें हैं, आप ऐसी चीजें कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको पैसे दे रहे हैं। सो दे अगेन दे आर लाइक व्हाई डू यू इवन नीड इट। वो चाहते हैं या कि आप एग्जैक्टली फुली फोकस करो फोकस अपना करो पढ़ाई स्टडीज पे के ऊपर। तो ये स्टडीज चीज पे होती है, या just don't do it। और
छुप छुपा के भी ना करो, क्योंकि जो है ना यस, अगर अगर पकड़े गए ना बहुत मसला होना है बहुत आपको। मतलब जी, बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती है। इट्स लाइक इतना जो है हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से यस। कोई 3-4 लोग को स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको हुँ, स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप उसका जो है ना बेस्ट बेस्ट यूज़ करो। जो आपको हुँ, पार्ट टाइम जॉब में पर आवर 10 पाउंड मिल रहे हैं ना, वो ट्रस्ट मी उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हुँ, आप जो वैल्यू अपनी डिग्री से, कनेक्शन से निकाल सकते हो। हुँ। शारिक, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन इट, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड होती हैं या नहीं? और जो हमारा प्रायर क्वेश्चन था इसके ऊपर? पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ नहीं होती, हुँ, तो बट इट राइट। डिपेंड्स। हुँ, लाइक मुझे क्योंकि आई गॉट एन ऑफर फॉर अ रिसर्च असिस्टेंटशिप ड्यूरिंग माय हाँ, मास्टर्स. दैट्स So गुड। I हुँ, was like, it's a big, it was a USAID project, and I was like, हुँ, I want to do that. So it was a big opportunity. I didn't want it to waste it. So then या I asked them specifically that I'm doing that for this. हुँ, Also, like in my program, there was a component of fieldwork, which was a हुँ, optional module. जहाँ पे हुँ, तंजानिया का ट्रिप था, और they don't हुँ, find that हुँ, that field work. So then I said that if I work there, I'll be able to fund that. So आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है थ्रू हुँ, अ प्रॉपर चैनल. सो वो आप कोई इस तरह से आप कर सकते हो, तो वो हो सकता है. बाकी ऑफिशियली नहीं होती. एसेज के ऊपर मैं मतलब हुँ, यस, फर्स्ट आई अग्री विद ऑल द पॉइंट्स ऑफ फोजिया, बट मैं इसको बहुत ज्यादा जो है ना वो आई लाइक टू प्लान माय एसेज वेरी वेरी रिगरसली. सो मुझे ये होता है कि आप उसको एक पूरा आपका एजेंडा आपका सेट होना चाहिए. ठीक है, सो टेक योर एसेज लाइक अ प्रोजेक्ट. जैसे आप एक प्रोजेक्ट हुँ, करते हो, तो आपने उसका प्रिलिमिनरी जो भी एनालिसिस होता है वो आपने करना है. ठीक है, फिर आपने जो है वो इंट्रोडक्शन उसका होगा, फिर आपने फील्ड में जाना है, देन आपने उसकी रिपोर्ट लिखनी है. देयर इज लाइक अ होल प्रोसेस टू फॉलो. आप अपनी कॉमनवेल्थ के एसे को भी जो है वो आप उसको स्ट्रक्चर करो. मैं सबसे पहले एसेज के लिए जब भी मैं किसी को मेंटोर करता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपने जब लिखना शुरू करना है, तो आपका काम ऐसे लिखने का वो उस वक्त नहीं स्टार्ट होता. वो आपका जो मेंटल वर्क है वो एक महीना पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए. सो हुँ, अगर आपने कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई करना है, सो जैसे फौजिया बता रही थी, यूट्यूब के ऊपर थ्रू अलुमिनाइज आपको एसेज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ठीक है, तो यस। आपने देख लेना है कि वो क्या, क्योंकि शिवनिंग के अंदर 4 मुख्तलिफ एसेज हैं, रैसमस के अंदर देयर इज वन हुँ, स्टेटमेंट, कॉमनवेल्थ के अंदर 12 एसेज हैं, और उसमें बहुत ओवरलैप होगा. ठीक है, जैसे हुँ, अगर हुँ, उन्होंने आपको कहा कि आपने ये कोर्स क्यों करना है, या इस कोर्स का हुँ, फायदा क्या होगा, तो ये कनेक्ट करेगा आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ. ठीक हुँ, है, और आप अगर एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो मोनोटोनस लगने लगेगा, जो कि विच इज नॉट आइडियल. सो हुँ, उसके अंदर अगर आपकी मेंटल प्रिपरेशन होगी कि आपने नैरेटिव को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो आप एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो हुँ, इसके लिए जो है जब आप लिखना, क्योंकि जो भी अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसकी कुछ अचीवमेंट्स तो होंगी. ठीक है, किसी हुँ, वजह से उसने डिसाइड किया कि उसने अप्लाई करना है. आप डिफरेंट उससे कैसे हो सकते हो अपने नरेशन में, अपने स्टाइल में, अपने नैरेटिव में, कि आप अपनी क्या पोर्ट्रे आप कैसे कर रहे हो, आपकी स्टोरी क्या है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका थोड़ा-सा जो है ना, आप उसको क्रिएटिवली उसको एक्सप्रेस करो. ठीक है? आप ये या ना कहो कि जी मैं जो है मेरा नाम ये है और मैंने ये किया और मैं आगे ये करूँगा. उसको आप प्रॉपर लेके चलो. एक और चीज़ जो एसेज़ के अंदर अगर मुझे कोई एसे के लिए रिक्वेस्ट करता है और मैं देखता हूँ, तो वो ये होता है कि एक मकसद की कमी आपको फ़ील होती है, कि वो बहुत हुँ, सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ ड्रिवन, हुँ, जैसे फ़ौज़िया ने पहले स्टार्ट में कहा था कन्वर्सेशन के, कि आपको उसका एक रैशनल देना ज़रूरी है. ठीक है, आप हुँ, उसको ग्लोबली कनेक्ट करो, कंट्री के साथ कनेक्ट करो. सो योर एसे आइडियली ऑब्वियसली हर बंदा जो ऐसे लिख रहा है उसकी स्टाइल अलग होगा. हुँ, पर मेरी गो टू अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप जस्टिफाई करो कि जो आप करना चाह रहे हो हुँ, इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक है, इसकी हुँ, ज़रूरत है भी या नहीं? जैसे क्लाइमेट चेंज था, तो मैं हमेशा उसको स्टार्ट इसी तरह से करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इश्यू क्यों है? तो मैं हुँ, स्टैटिस्टिक्स दूँगा, कि मैं हवा में बात नहीं करूँगा कि जी हुँ, बहुत मसला हो गया है या समथिंग लाइक दैट. नो वन इज़ हाँ, गोइंग टू बिलीव दैट. आपको उसको हुँ, एविडेंस देना है कि फलाँ इंडेक्स के अंदर जो है पाकिस्तान की रैंकिंग 146 है आउट ऑफ हुँ, 181. सो उसकी क्या रीज़न है. ठीक है, फिर आप उसे ग्लोबली कनेक्ट करो कि जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है वो कैसे बढ़ी है पूरी दुनिया में. एंड देन आप कहो कि देयर इज़ अ नीड फॉर दिस प्रोग्राम, कि मतलब मैं ऐसे हुँ, ही शौकिया तौर पे ये काम नहीं कर रहा. जो मैं कर रहा हूँ उसके बिल्कुल। पीछे पूरी रीज़निंग है. ठीक है, एंड देन हुँ, आपने एक जस्टिफिकेशन दे दी कि देयर इज़ अ नीड फॉर दिस प्रोग्राम व्हिच शुड बी हुँ, बैक्ड बाय
स्टैट्स, फिगर्स, एविडेंस, ठीक है। जाहिर है आपने पूरा कोई रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आपने नहीं छापनी, 1-2 लाइंस जस्टिफाई कर देते हैं कि जी आपकी एविडेंस है आपकी जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू दिस कि देयर इज, आपने पहले क्या किया कि आपने नीड को पोर्ट्रे किया, आपने उसको हाईलाइट किया कि इसकी जरूरत है। उसके बाद आप ये बताओगे कि आप कैसे आइडियल हो इस जरूरत को, इस गैप को फिल करने के लिए। देन आपका आ जाएगा कि अच्छा मेरी ये अचीवमेंट्स हैं जो कि जस्टिफाई करती हैं कि मैंने पहले ये चीज की है, इस चीज की कमी है जो कि यूके की यूनिवर्सिटीज मुझे इक्विप कर सकती हैं, और फिर इसको मैं आगे फ्यूचर में कनेक्ट करूंगा, और फिर जो है वो मैं आके सर्व करूंगा कंट्री को, या फिर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगा इस तरीके से। एक और चीज जो एसएस के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि आप प्रोग्राम की जो डिलीवरेबल्स हैं, या जो प्रोग्राम का क्रक्स है, जो एसेंस है प्रोग्राम का, वो आप समझो। शिवलिंग के अंदर जैसे मैंने बताया, इट्स अबाउट लीडरशिप, ठीक। सो लीडरशिप आपको हाईलाइट करना है अपना आप, आपने हर जगह पे नेटवर्किंग के ऊपर ऐसे होता है, लीडरशिप के ऊपर होता है, तो आपने बताना है कि ओके मैं लीडर हूँ, मैंने ये पहले किया हुआ है, अब मजीद लीडरशिप इंप्रूव करने के लिए मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए। इसी तरह एरास्मस के अंदर आई थिंक आपका कनेक्टेड होना चाहिए, आपकी फील्ड के साथ लिंक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्रायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। या इन कॉमनवेल्थ ऑल द फोकस जो या हाईलाइट जो है वो होती है आपकी डेवलपमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है, कि आप डेवलपमेंटल इम्पैक्ट आपका क्या है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एसएस के अंदर वो बार बार जिक्र करते हैं एसडीजीज का, आपको उसको कनेक्ट करना है कि फला मतलब मेरे केस के अंदर एसडीजी 5 था, 13 था, मुझे उसको बार बार अपने प्रोफाइल से कनेक्ट करना है वगैरह वगैरह। तो इन दैट केस इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्कॉलरशिप को समझो। जो मेरी ऐसे लिखने की अप्रोच शिवलिंग की थी वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई कॉमनवेल्थ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ये समझना है कि अगर मुझे इतने अगले पैसे दे रहे हैं तो उनका भी कोई एजेंडा, कोई डिमांड, कोई उनकी नीड होगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमने आपको उनकी नीड को भी पूरा करना है, तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर लास्टली फौजिया की बात अगेन मैं रिपीट करूंगा कि रिसर्च आप करो जितनी आप कर सकते हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ के एसेज क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। पहले किन लोगों को मिला है, स्टॉक पीपल ऑन लिंक्डइन, ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पे मैं जाके देखता होता था कि ये क्या इनको क्या सुरखाव के पर लगे हैं जो इनको मिल गया, ये समथिंग लाइक दैट। सो आप उसको देखो, आप उनके प्रोफाइल्स को देखो, एंड फिर आप उनसे रब्ता करो, बट आपकी अपनी पहले की रिसर्च पूरी होनी चाहिए कि आपने ऑलरेडी, जब मुझसे कोई रब्ता करता है तो मुझे पहले मैसेज में पता चल जाएगा कि ये इसका काम कितना हुआ है, ठीक है, इसने कितना ऑलरेडी प्रिपरेशन इससे कितनी है। अगर मुझसे कोई बंदा आके ये पूछ रहा है मैसेज के अंदर कि हमने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, या फिर लॉट ऑफ पीपल लिटरली आस्क के कहाँ पे अप्लाई करें, सो आई एम नॉट द लाइक राइट पर्सन टू आंसर दीस बेसिक थिंग्स, ठीक। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका अपना रिसर्च वर्क हो, एंड देन जहाँ पे आप अटक रहे हो, जैसे एरास्मस के दौरान जो है वो मैंने देयर वर सम स्कॉलर जहाँ पे मैंने उनको अपनी सीवी शेयर की थी कि दिस इज माय सीवी, दिस इज माय बैकग्राउंड, आप इसको रिव्यू कर दो। नाउ पीपल लॉट ऑफ पीपल, मैं अग्री उसको करता हूँ ऐसे को रिव्यू करने के लिए, जहाँ मुझे लगता है कि इसने अपना काम 100% किया है, अब आगे जो इसको एक्स्ट्रा पुश चाहिए वो मैं इसको दे सकता हूँ। बट अगर आप बिल्कुल लिटरली एबीसी से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली नो वन हैज दैट सॉर्ट ऑफ टाइम। सो या आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। या ओके, आई थिंक सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, लेकिन एक चीज रह गई है, दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन प्रोसेस इज इंटरव्यू। आप लोगों के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस क्या थे, एंड एनी टिप्स फॉर इंटरव्यूज फॉर एस्पायरेंट स्टूडेंट्स लाइक बोथ ऑफ यू गाइस। सो फौजिया, आपका इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था, और आपकी कोई टिप्स हों बच्चों के लिए? और आई थिंक 2 इंटरव्यूज होते हैं, एक एचएससी में होता है जो मास्टर्स कॉमनवेल्थ होती है, एंड एक में ख्याल से आई थिंक कॉमनवेल्थ का अलग से भी इंटरव्यू होता है। आई एम नॉट श्योर, तो आई वांट टू लिसन। ओके, सो मेरे केस में सिर्फ एचईसी का इंटरव्यू था। कॉमनवेल्थ वालों ने प्योरली मेरी एप्लीकेशन की बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया था। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं गई थी वहां पे इंटरव्यू के लिए, सारे आदमी थे, सारे लड़के थे, कोई वहां पे 20 लड़के बैठे हुए थे, ठीक है, और मैं एक अदर लड़की थी वहां पे। सो व्हिच इज लाइक पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग, दैट्स फाइन। एग्जैक्टली। और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में एक्चुअली इंजीनियरिंग में ज्यादा लड़कियां हैं, लाइक यूके में और ज्यादा बुरा हाल है। यानी मैं जब अपनी फर्स्ट क्लास के लिए गई थी, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड, क्योंकि जो है ना मुश्किल से 2-3 लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे, आई वाज लाइक अ मैसिव हॉल। सो दैट इज एनकरेजिंग, बट एनीवे, तो मेरा ये था। अच्छा, मैंने अपना इंटरव्यू का मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस ऐसा करूंगी कि फर्स्ट थिंग, यू नीड टू ड्रेस अप फॉर एन इंटरव्यू। और मैं जब आपको कह रही हूँ ड्रेस अप, तो मतलब कोई बेसिक ड्रेस अप नहीं,
यार हम्म, पिंटरेस्ट पे जाओ, वहां जाके देखो कि लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं इंटरव्यूज के लिए। ये मैं दोनों लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए कह रही हूँ। आई हम्म, गेट इट, बहुत गर्मी होती है यार कराची में, नहीं पहना जाता कोट, हम्म, उतार के रख लो अपने पास, लेकिन जब इंटरव्यू के रूम में जा रहे हो ना, वो एसी वाला कमरा होगा, पहन लो कोट, ठीक है। अब हम्म, उसके ना थोड़े से बेसिक एथिक्स भी सीख लो कि बटन कब खुला होना है कोट का, कब बंद होना है कोट का, बैठना कैसे है। आपको ना हम्म, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हम्म, बताती हैं कि लीडरशिप, आपका जो ऑरा होता है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी एग्जैक्टली। चीज, आप जब बात कर रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। हम्म, अब ये चीज आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आप हम्म, यूट्यूब की वीडियो देखो और उसके बाद जो है ना आपका ठीक है यार मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मैं ये सारी चीजें करूंगा, हम्म, बिकॉज आपसे उस वक्त नहीं होंगी, बिकॉज आप नहीं होगी। नर्वस होगे। तो आप जब हम्म, नर्वस होगे तो आपका दिमाग सिर्फ ये सोच रहा होगा यार मैंने आंसर क्या देना है, आप भूल जाओगे आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी हम्म, लैंग्वेज इज अ मैसिव मैसिव गिव अवे ऑफ योर कॉन्फिडेंस। सबसे हम्म, पहले जो इंसान मतलब आपको जो जज कर रहा है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, और आप जब रूम में एंटर होगे ना, वो हम्म, चीज ही जो है ना आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन सेट कर लेगी। आपके बोलने से पहले उनका जो है ना हम्म, वहां पर एक बड़ी सी, काफी बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है जहां से वो आपको देख रहे होते हैं कैमरा के थ्रू। हम्म, वो आपको एंटर होता हुआ भी देखेंगे, वो आपको बैठते हुए भी देखेंगे। तो आपको हम्म, ये कॉन्फिडेंस शुरू से पोर्ट्रे करना होगा कि आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप में, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। तो ये जो है ना, आप हम्म, अभी से, आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई ना भी करो, आप ये अपनी आम जिंदगी में जो है ना या इसकी कोशिश करना शुरू करो। इट्स जैसे पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, या। यस, आप जब बात कर रहे हो हम्म, तो आप बहुत ज्यादा जो है ना जो यूज कर हम्म, रहे होते हैं, हम फिलर वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा फिलर वर्ड्स यूज ना करो, कोशिश करो आप कम से कम फिलर वर्ड्स यूज कर रहे हो। हम्म, इसके अलावा जो है जब आप अपनी बात कर रहे हो किसी के साथ, तो आप जो है ना एक सॉलिड किस्म की बात करो। आप ये ना कहो कि हम्म, यार मैंने ये सुना था ऐसे होता है, नहीं। आपके पास एक कॉन्क्रीट बेस होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आर गोना आस्क यू टू जस्टिफाई दैट। अगर आप उनको जाके बोल रहे हो कि मेरा इरादा है कि मैं फ्यूचर में बिजनेस करूंगा, या यस। मैंने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपके फिर किस तरह आपने करना है, या आपने हम्म, फिलहाल क्या किया है। अब जैसे मैंने जब इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ और मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था हम्म, ठीक है तो आपने क्या वर्क किया है। तो मैंने उनको बताया कि मैं लिंक्डइन पे जो है जो रेलेवेंट प्रोफेशनल्स थे, मैं उनके पास जाती हूँ, मैं उनसे जो है मैंने एक सर्वे बनाया हुआ है जो मैं सर्वे कर रही हूँ जस्ट टू चेक कि इस सर्विस की एक्चुअली डिमांड है या नहीं है, किस जगह मोर डिमांड है। तो एक सॉर्ट ऑफ हम्म, उनको ये प्रूफ था कि ठीक है यार ये बंदी रिसर्च कर रही है, इसने अपने बिजनेस पे काम करना शुरू कर दिया है जितना इसकी कैपेसिटी में हो सकता है। ऑफ कोर्स हम्म, आई हैड नो फंडिंग, तो मैं वो फंडिंग वाला काम तो नहीं कर सकती थी, मतलब जितना मैं कर सकती exactly, थी वो। यू डोंट हैव टू बी लाइक एक्स्ट्रा क्रेजी कि भाई मैंने जो है ना, अब आई डोंट नो, इलॉन मस्क से बात की हुई है, इतना क्रेजी नहीं होना है, बट अपने बेसिक लेवल पे, यानी आपने जो है ना, आप जो बोल रहे हो आपने वो करना शुरू किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज जो है ना, आप जब इंटरव्यू में बैठे हुए ना, आप ये भूल जाओ कि वो आपको जज करें। ऑफ कोर्स जज करें वो आपको, दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग पेड फॉर, बट आप उस वक्त ये सोचो कि आपका एक पैशन है, आपको बाहर जाना है, आप अपना पैशन पोर्ट्रे कर रहे हो, सही है। हम्म, इसमें टोन जो होती है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप जब बात कर रहे हो तो एक तो आपकी आवाज बहुत मोनोटोन नहीं होनी चाहिए कि आप भाई एक जो है ना टीवी के आई डोंट नो न्यूज हाँ, प्रेजेंटर हो, सही है। एक आपकी आवाज में पैशन होना चाहिए, एक कैलकुलेटेड पैशन, प्रोफेशनल अंदाज में, हम्म, ठीक है। दूसरा आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी उस हिसाब से होने चाहिए। आप लोगों ने शायद ये बात नोटिस की होगी कि जब कोई किसी इंसान को किसी चीज से बहुत मोहब्बत होती है, उसकी आंखों में एक चमक सी होती है। सो यस। वो आप जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहे हो। अच्छा, ये सब करने के लिए ना हम्म, आपको थोड़ा सा अपनी नर्वसनेस कम करनी होती है, ठीक है। तो हम्म, पहली चीज तो ये होती है कि शुरू में हर इंसान नर्वस होगा, फिर इवेंचुअली दे विल ईज आउट। बट वो शुरू की हम्म, नर्वसनेस कम करने के लिए आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट जो है ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, आप वो हम्म, जो है इंटरव्यू में जाने से पहले आप वो ब्रीदिंग टेक्निक कर लो, दैट हेल्प्स अ लॉट। वो आपकी हम्म, एंजाइटी को इतना कम कर देगी कि आपकी सोच आए, आप उसको एक अपनी डेली लाइफ का पार्ट भी बना सकते हो। देयर आर डिफरेंट हम्म, टेक्निक, आई फॉरगॉट द नेम, बस में ये होता है कि आप जो है ना 8 सेकंड्स तक आप जो है अपने नाक से सांस लेते हो, और उसके बाद 8 सेकंड्स आप होल्ड करके रखते हो, फिर आप स्लोली उसको अपने माउथ से रिलीज करते हो, ठीक है। तो ये आप उसको जो है ना लेट्स से 5-6 टाइम्स करो, जितना आपके पास वक्त है उतना करो, ये आपकी एंजाइटी को बहुत कम कर देगी। तो जब आपकी एंजाइटी कम होगी आप ऑटोमेटिकली इंटरव्यू बहुत अच्छा दोगे, ठीक है। इंटरव्यू देने के लिए आप जब जा रहे हो आप ये सोचो यस यू डिजर्व इट,
वो आपको देंगे। जब आप ये सोचो कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, ये मुझे मिलेगी ये अपॉर्चुनिटी, तो आपके अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस निकलेगा. सो इट्स अबाउट वर्ड्स एंड इट्स आल्सो अ लॉट अबाउट कॉन्फिडेंस. अगेन विद वर्ड्स यू हैव टू बी कॉन्क्रीट विद व्हाट यू आर सेइंग. एंड when you are giving your introduction, they might ask you for an introduction. तो आप YouTube पे जाओ, YouTube पे बहुत वीडियोस हैं जहाँ वो आपको सिखाते हैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको कैसे उसको स्पेस आउट करना है, आपको कैसे उस इंट्रोडक्शन को रेलिवेंट बनाना है उन लोगों के साथ. एंड ऑलवेज ट्राई कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वो कॉन्वर्जेशनल हो. ये ना हो कि मतलब वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप एक जवाब दे रहे हो, आगे उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या सवाल पूछ रहे हैं आपसे. तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि उनके पास एक दूसरा सवाल है उस जवाब के अंदर से. अगेन दिस इज अ लिटिल बिट साइकोलॉजिकल. तो आपके जवाब के अंदर आपका जवाब इस तरह होना चाहिए कि अगला जो आपसे सवाल पूछ रहे हो ना उससे रिलेटेड आप उसको जवाब बहुत अच्छे से दे सको. तो यानी आप Yeah. उनको थोड़ा सा, आप उनके साथ भी थोड़ा सा ना दिमागी गेम खेलो. आप उनको जवाब ऐसा दो कि जवाब के अंदर ही ना दूसरा सवाल हो, और सवाल हो. वो सवाल उसको आप थोड़ा सा इस तरह फ्रेज कर दो ना अपने जवाब को कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो बट वही सवाल वो आपसे पूछे. बट ऑफ कोर्स देयर आर केसेस जहाँ पे उनके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे. मतलब मेरे केस में बहुत कॉन्वर्जेशनल था, बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके उन्होंने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे थे. अगेन आप जाके थोड़ा सा रिसर्च करो उसके बारे में कि आप दूसरे स्कॉलर से भी पूछ सकते हो, आप एक नॉर्मल रिसर्च भी कर सकते हो कि किस तरह के जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उनको थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिस करो. अब ये बात तो है ही कि लोग जो है ना शीशे में जाके बात करते हैं उससे कॉन्फिडेंस बढ़ती है. आप वो कर लो. अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप जो है ना अपने किसी सुपीरियर को बोलो. अगर आप जॉब करते हो और कोई आपका सुपीरियर है जो आपसे क्लोज है इतना कि वो आपको जो है ना दिन के 10-15 मिनट दे सकता है, आप उससे जो है ना जाके आप उसको बोलो कि वो आपका इंटरव्यू ले. उससे ये होगा कि सिंस वो सुपीरियर है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी वो नर्वसनेस वाली पार्ट होगा, तो उससे आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी. अगर नहीं है कोई भी तो जस्ट आस्क someone like within your family, your sister or someone. अब बहुत हंसी आएगी यार जवाब देते हुए लेकिन थोड़ी सी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी. सही है. और दूसरा वो ये नहीं सोच रहे होते कि आपका एक्सेंट कैसा है, वो आपकी ग्रामर देखेंगे, ठीक है, आपका बात करने का अंदाज देखेंगे. तो ये आप भूल जाओ ओ यार मेरा तो मैं तो भाई अंग्रेजों की तरह नहीं अंग्रेजी बोलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता. ना यहाँ पे वो देखते हैं ना वहां पे वो देखते हैं. बस आपका बात करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए और आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए. एंड अगेन आई एम लाइक ranting a lot, but अब ऐसी चीजें देखो जैसे बीबीसी हो गया या नेट जियो, ये ऐसी जो है ना जहाँ पे वो फॉर्मल अंदाज में बात करते हैं. अब ऐसे जब शोज वगैरह देखोगे ना उससे आपकी इंग्लिश बहुत डेवलप होगी. बिकॉज जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो ना, नेटफ्लिक्स आपकी अंग्रेजी को इनफॉर्मल बनाता है. सो बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कि आप एक हफ्ते तक जो है ना सिर्फ फॉर्मल शोज देख रहे हो, या एक हफ्ते तक भी आप नहीं देख सकते तो 2-3 दिन तक आप कोशिश करो कि आप फॉर्मल शोज देखो. वो आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि आप फॉर्मल कॉन्वर्जेशन करो और आप गौना वोना वाली लैंग्वेज ना यूज करो. सो या इफ Sharik wants to add more. Yeah. Sharik, if you want to add more a bit on interview. In Commonwealth Share, there's no interview. So one of the reasons why I didn't want to apply for HEC is because Pakistan ke andar like interview ka process bhi it's like a lot. So uske liye aapko jaise Fawzia explain that in very much detail because it needs that detailing because Pakistan ke andar it's not just your ability that they are testing but बहुत चीजें और जो कि बहुत रेलेवेंट नहीं होती आपकी स्कॉलरशिप के लिए या आपकी पर्सनालिटी को फुल रिफ्लेक्ट करने के लिए बट दे डू दैट दे गो इनटू दैट डिटेल्स आपके बाल लंबे हैं नहीं हैं एंड ऑल दैट एज अ गाय व्हिच शुडंट ऐड एनीथिंग अप. यहाँ यूके में all the Scholarship interviews में that I उसका कोई फर्क ever नहीं पड़ना attended, चाहिए. even in Europe, they don't care about all those things. But in Pakistan, थोड़ा सा वो एक colonial lens अभी भी वो लेके उसको चलते हैं कि etiquettes and all that, which are important, extremely important, but they take it to the next level. In Commonwealth shared, there is no such thing because essays आपके इतने डिटेल में होते हैं. जैसे मैंने कहा कि वो एक ही क्वेश्चन को इतने अलग तरीके से कभी कान को इधर से पकड़ेंगे कभी इधर से, तो वो नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता. So there is no need for the interview. Great. Okay, guys. I think that's all. कि हमने सारी चीजें almost discuss कर ली हैं about scholarship. But now I want like your suggestions for candidates. One best thing, both of you guys should suggest this. कि एक चीज जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, कोई एक टिप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जीतने के लिए जो उनको like यूनिक बनाए, उनको डिफरेंशिएट करे from other candidates.
That's a very difficult question. Yeah. Let me think for a bit. Yeah. Sharik, you can go if you can think of something, but I'll just take some Yeah. time. I think we covered a lot about that, but one Hmm. thing is, I think, research and research in Hmm. every dimension, uh, starting from what is the need, जैसे मैंने कहा rationale Hmm. बनाना and all that, starting on the universities. तो अगर आप ऐसे यूनिवर्सिटी का लिख रहे हैं, मुझे याद है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के अंदर मैंने एसेस के अंदर एग्जैक्टली लिखा था कि मुझे कौन से प्रोफेसर से क्या चीज़ करनी है और Hmm. कैसे करनी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से डॉक्टर बीना अग्रवाल थी। अब मेरा एक पूरा रिसर्च पेपर है जो कि उनकी एक एक्सटेंशन के अंदर है। सो आपको पता होना Nice. चाहिए कि अपने किस बंदे को क्या, वो रिसर्च आपकी प्रोग्राम के बारे में, देन एसेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मतलब आई डोंट इनकरेज कि आप स्कॉलर्स से खुद ऐसे, मैं अपना ऐसे कभी भी किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आई Personal एम नॉट detail. Yeah. कंफर्टेबल। बट और वो ये भी चीज होती है कि नाउ इट्स चैट जीपीटी, सो दे आर जस्ट गोइंग टू टेक योर Hmm. ऐसे एंड देन छापा सिस्टम। सो वो Yeah. चीज भी आपको वो है, बट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, Hmm. जो और लोगों के हैं, स्पेशली अफ्रीकन स्कॉलर्स का बहुत ज्यादा यूट्यूब पे काम है कॉमनवेल्थ के Hmm. ऊपर। सो वहां पे आपको वो Hmm. मिल जाएगा, सो वो उसके बारे में आप रिसर्च करो। देन फौजिया ने पहले कहा कि आपको वापस आके जो आपको अपना डेवलपमेंटल इम्पैक्ट बताना है उसके अंदर, Hmm. तो मैंने एग्जैक्ट फिगर्स दिए थे कि अगर जेंडर रिस्पॉन्सेज डिजास्टर रेजिलियंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे कि हमारा मुझे याद भी नहीं है उस इदारे का नाम, जो कि Hmm. डिजास्टर अथॉरिटी है हमारी, एनडीए ND, और नेशनल डिजास्टर NDMA. अथॉरिटी और एनडीएमए और एक और भी होती है। सो आपको Hmm. एग्जैक्ट उसको मैंने नंबर दिया था कि उसमें इतना जेंडर रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट है, इतना नहीं है। Hmm. ठीक है, एंड ऑल दैट। सो आपका हर चीज जो है वो रिसर्चर्स हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपने, और एक और जो इस रिसर्च के साथ ही कनेक्टेड है, वो ऑब्सेशन है आई थिंक, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू वांट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, वो आपको 3-4 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है वो एवं ही Hmm. आपको दे देंगे कि I mean, आपको, ठीक है, उसके अंदर आपका ऑब्सेस होना जरूरी है। ठीक है, कि आपको उसके hmm. बारे में ईच एंड एवरी चीज पता होनी चाहिए। यू शुड टेक इट एज अ फुल टाइम जॉब, और उस वक्त आप उसको पूरे जोशो खरोश के साथ आप उसको करो। अगर आपका इंटरेस्ट जस्ट है कि Hmm. अच्छा So, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ऐसे कॉमनवेल्थ के लिए माई इंटरेस्ट वॉज लाइक, मैं 100% पैशनेट नहीं था, पर मैं बाकी स्कॉलरशिप्स के लिए था। और वो स्कॉलरशिप्स के लिए जब आपने ऑलरेडी एसेज प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे hmm. आपकी जो आप एडिशनल स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर भी। तो अगर मतलब Hmm. ऑब्वियसली आपको इतनी ज्यादा फंडिंग चाहिए, so you have to justify that you are crazy passionate about that. So I think these are like 2 points which are sort of Hmm. connected. So मैं उनको कह सकता हूँ, Yeah. एक पॉइंट है कि आपकी रिसर्च हंड्रेड Yes. परसेंट होनी चाहिए, और रिसर्च आपकी तभी होगी when you are fully you are thinking about that. और जैसे मैंने Hmm. पहले कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने ऐसे लिख लेना है, वो दिमाग में आपकी खीर पकती रहनी चाहिए फॉर 1 मंथ। तो आपको मुख्तलिफ, जब आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको मुख्तलिफ तरीके जो पैरा इजहार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, Hmm. जैसे इन इरास्मस, जिस पे मुझे फाइनली इरास्मस स्कॉलरशिप मिली थी, दैट वाज कि मैंने उसको एक एलिगरीज यूज की थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कि Hmm. क्योंकि मेरा बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड है, तो मैं सोचता रहा तकरीबन महीना कि मुझे पता था मुझे क्या क्या लिखना है, पर उसको किस Hmm. तरीके से, किस पैटर्न में लिखना है, उसके लिए मतलब मैं क्रिएटिवली, आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए। सो एक Hmm. महीना में सोचता रहा कि इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। एंड व्हेन यू आर, मे बी दैट्स द रिसर्चर इन मी। पर जब आप कंटिन्यूअसली इसको सोचते रहोगे, तो आपको एक चीज को 10 तरीके से कहने का तरीका या हुनर जो है वो आपको आपको Hmm. आ जाएगा। सो और कॉमनवेल्थ के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि ये 12 एसेज हैं, एक ही चीज आपसे बार बार पूछेंगे, तो आपको उसको 10 तरीके से बताना आना चाहिए। सो आई थिंक इन दैट Yes. वे रिसर्च एंड पैशन इज द ओनली थिंग जहाँ पे आके Hmm. कमर टूटती है हर चीज की। So, Fauzi, it's your turn now. Yep. So I'll just add on to Sharik as is actually a different point. So मेरे दो points थे जो कि kind of interrelated है. They're both like confidence and leadership. So no matter which scholarship you're applying for, जो एक main चीज वो देख रहे होते हैं वो leadership देख रहे होते हैं. ठीक है? Yes. Because unfortunately, जितनी भी आप बड़ी companies देख लें, जो भी founder है, he of course has leadership capabilities. ठीक है? Yes. In order to progress even in a corporate job, आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, Hmm. तो Okay. इसलिए वो हमेशा जो है ना लीडरशिप जरूर देखते हैं। तो आप जब अगर मेरे दिमाग में
स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तब से था जब मैं 9th या 10th ग्रेड में थी। तब से मेरे दिमाग में था ठीक है मैंने ना बाहर जाके पढ़ना है। अब मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकती थी बाहर जाके पढ़ना किसी इतनी मतलब मुझे सिर्फ बाहर जाके नहीं पढ़ना था, मुझे बाहर जाके किसी अच्छी यानी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। सो अगेन देयर वाज लाइक दिस एक्सपेंस फैक्टर, तो मैं तो वो नहीं कर सकती थी अनलेस मेरे पास स्कॉलरशिप हो। सो आई काइंड ऑफ स्टार्ट ट्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आप अपनी ट्रेनिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप अभी 9th 10th ग्रेड में हो, चाहे आप अपनी यूनी के लास्ट ईयर में हो, ठीक है। तो दो चीजें आप अपनी डेवलप करो, लीडरशिप और कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपकी लिखाई में, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आपने ऐसे सबमिट किया है, उसके अंदर अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा पढ़ रहा है, वो फौरन देख के बता सकता है कि आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी है या नहीं है, और आप जो लिख रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। पर अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया कॉन्फिडेंस की मैंने कुछ टिप्स बताई, इसी तरह आप लीडरशिप के लिए भी यही कर सकते हो कि आप जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी में जो चीजों में पार्टिसिपेट करो। यू डोंट हैव टू बी लाइक अ लीडिंग लाइक अ सोसाइटी और समथिंग। बहुत छोटी छोटी चीजों में भी आप जो है ना वो लीडरशिप आप अपनी ला सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स लीड करो, जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको लीड करो। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर कोई छोटा सा जो है ना सेटअप बना लो, आप अपने मोहल्ले को लेके कुछ कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, जैसे अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, हर जगह फ्लडिंग हो रही थी, मे बी आपने अपनी मोहल्ले की कम्युनिटी बना ली जिसके साथ आपने मिलके उसको जो है ना खत्म करने की कोशिश की, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की, वो वहां पे आपकी लीडरशिप आ जाती है। आई डोंट नो इफ छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, छोटे छोटे ट्रिप्स हैं जो आपने अरेंज किए हैं मे बी, तो इस तरह जो है ना कोशिश करो। आपको जरूरी नहीं है आप ये सारी चीजें अपने एसेज में लिखो, आप लिख भी सकते हो अगर आपके पास जो है ना बहुत कम लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं तो। लेकिन आप इस तरह जो है ना अपनी लीडरशिप डेवलप करना शुरू करो, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस डेवलप। दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। एक इंसान जो है ना, चाहे आप इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, आप तब तक लीडर नहीं बन सकते जब आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल ना सको, यानी कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात जो है सामने वाले को बता ना सको, ठीक है। तो जितनी आप जो है ना अपॉर्चुनिटीज लोगे लोगों को लीड करने की, चीजों में पार्टिसिपेट करने की, एक आपको प्रोएक्टिव होना है, आपको चीजों में जाना है, आपको सिर्फ जो है ना किताबी कीड़ा नहीं बन के रहना है। बिकॉज दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट, अगर आपकी 4 जीपीए है लेकिन आपने उस 4 जीपी के अलावा कुछ और नहीं किया हुआ, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये चीज है। तो आपको चीजों में पार्टिसिपेट करना है, अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, उस लीडरशिप को बिल्ड करना है, और ये जो है ना आपको खुद ब खुद आपको फील होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका कोई आपके पास जो है ना मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, आपको खुद महसूस होगा कि आप जो है ना लोगों के सामने बात करते हुए ज्यादा बेहतर बात कर रहे हो। ये बात करने की प्रैक्टिस आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए जो है स्टेज पे जाके बात कर रहे हो, उसके लिए आप अपने घर वालों के साथ बात करते हो, आप वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हो कि आप जो है अपनी बात ज्यादा अच्छे अंदाज में बता रहे हो। आप लाइक इस तरह की जो है ना बीच में फिलर्स नहीं यूज कर रहे हो, इस तरह की चीजें। सिमिलरली जो है that I would say is one of the biggest tricks that would help other than research, कि जब बंदा जो पढ़ रहा है आपका ऐसे, वो पढ़ के बोल सके कि हाँ यार ये बंदा जो है ना आगे जाके लीड कर सकता है हमारी डेवलपमेंट को, ये आगे जाके जो है एक चेंज ला सकता है। और दूसरी चीज कि ये बोल रहा है ये चेंज ला सकता है, इसकी बात में वजन है, तो वो वजन तभी आएगा जब आपके लिखने में कॉन्फिडेंस हो। एंड एक और टिप जो मैं पहले आंसर में बताना चाह रही थी कि when you are writing your essays, don't start with something basic like, oh, I am this, or I studied here. Start with something concrete. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्शन में जाना था, मुझे एनवायरनमेंट और कंस्ट्रक्शन को रिलेट करना था, तो मैंने इधर से स्टार्ट किया कि किस तरह कंस्ट्रक्शन जो है एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है। मैंने स्टैटिस्टिक्स अंदर लगाए जो कि ज्यादा क्रूशल थे, फॉर एग्जांपल वाटर कितना वो यूज कर रहा है, और किस तरह जो है ना उसको फिर मैंने रिलेट किया कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांट टू गो इन environmental construction. तो इस तरह से आप जो है ना शुरू करें। But again, thanks to my confidence and leadership point, that I would say is very crucial other than research. Yeah, thank you very much for both of you guys. I think आप लोगों ने जितना एक्सप्लेन किया है और जितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत कम मैंने, ऑल्दो मैंने आप इससे पहले मैंने क्वेश्चंस गैदर किया, और मैंने क्योंकि आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, और मैंने फिर यूट्यूब वीडियोस भी देखी, तो इतना क्लियरली कहीं पे भी नहीं था। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही थी कि व्हाट इज कॉमनवेल्थ शेयर्ड एंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ मास्टर्स, और इसके लाइक क्या प्रोसीजर्स हैं। एंड आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स। तो इस आपका लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल thank you very much for your time, क्योंकि I know it's very difficult. Sharik is a PhD student, Fawzia is working full time and also have a startup, so it's very difficult, and
I would again say thank you very much for your time, and this time will help, of course, future students. Yeah, I would Yeah, like to one last thing that I completely forgot. Sharik ne mentioned किया था yeah. chat GPT के बारे में. Don't use chat GPT or AI. Like they can tell when you use chat GPT and AI. उनके पास systems होते हैं, so don't do that. That's just Hmm. like an automatic rejection for you. So yeah, don't do Yeah. that. You can obviously you can use it for brainstorming, idea generation, and all that, but Yeah. it shouldn't be the final product. Like Yeah, Yeah. but बिकॉज again with बिकॉज उस हिसाब से मैं उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब यू आर नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद फेलो स्कॉलर्स, यू आर आल्सो कम्पीटिंग विद एआई. सो अगर किसी ने बहुत माइंडफुली एआई को यूज किया है, देन ऑब्वियसली यू नो इन द राइट सेंस कि उन्होंने आइडिया जनरेशन के लिए यूज किया है, Hmm. पॉलिश करने के लिए, नॉट द एसे का जो फाइनल राइटअप है उसको पॉलिश करने के लिए Hmm. नहीं, पर ओवरऑल यू नो स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए. सो अब आप Hmm. उसके साथ भी compete कर रहे हो, सो वो एक डबल Hmm. फैक्टर भी होता है. सो यूज एआई बट यूज इट वाइजली and use it, Hmm. you know, for like in ethical way. yeah, and Yeah. also there's this thing like start with brainstorming yourself. तो सबसे पहले AI पे ना भागो, पहले अपना पूरा काम करो, उसके बाद जो है Hmm. AI के पास जाओ idea generation के लिए. Because I was actually reading this research yesterday, और MIT बोलता है कि आपका brain जो है वो literally rot होता है because of Yes, ChatGPT. So that's true. yeah, so use your own brain, your own individualism, your own critical thinking first, and then go to AI. So yeah. We were Yeah. lucky in that regard कि I think फौजिया का तो पहले था और मेरे बिल्कुल एप्लीकेशन के कुछ महीने बाद चैट जीपीटी लॉन्च हो गया था. सो हमारे Yes. चैलेंजेस नहीं थे, बट दे आर लाइक यू नो डुअल एस्पेक्ट्स टू चैट जीपीटी Hmm. कि Yeah. आप बिल्कुल उसको छोड़ भी नहीं सकते. Yeah, true. Yes, exactly. So once again, thank you very much, guys. So that's all I think, and this time will help so many students. So any final remarks or like anything that you want to add? That's it, and then we can end the meeting. Okay. For me, if anyone wants to reach out to me for help, I'm more than happy to help and Mm. support. You can leave my LinkedIn link in the Yeah, description of the video. in So the just go help चाहिए वो आके मुझसे help ले सकते हैं. But please don't ask me questions that make me think that you could have done that research yourself. But yeah. Um, yeah. Just go through this whole video, and you'll find maybe to answer of your like many questions. yeah. Also, I think we missed one part. That was the recommendation letters. We didn't talk about that. Yeah, exactly. If you guys want to add on that, yeah, please go ahead. Yeah, so when you do recommendation letters, so a lot of the teachers would ask you to write them yourself, and then they would just review them and Mm. put them in your for you. तो जब आप recommendation letters लिख रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा जो है ना, अगर आप खुद लिख रहे हो या अगर आपको कोई टीचर भी Mm. लिख रहा है तो उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो वो उसको भी एक जो है ना ऐसे की तरह ही ट्रीट करें. तो थोड़ी डिटेल दें, ये नहीं कि वो छोटी मोटी बातें लिखते हैं. Mm. सो कुछ मेन पॉइंटर्स होते हैं जैसे कितने साल आपने उनके साथ वक्त गुजारा है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसमें आपके ग्रेड्स कैसे थे और ड्यूरिंग क्लासेस आप जो है ना कैसा रिएक्ट कर रहे थे उसमें. अगेन वो थोड़ी सी जो है ना स्किल्स आपकी नजर आनी चाहिए. सो इट शुड बी डिटेल्स. मैंने बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन लेटर्स देखे जो बहुत छोटे से होते हैं. सो मेक श्योर योर recommendation letter is detailed enough. Shouldn't be like a massive essay or anything, but इतनी detail होनी चाहिए कि वो आपकी skills को justify करे. And also it is always great कि आपका जो टीचर ने recommend प्रोफेसर ने जो recommendation letter लिखा है उसमें वो बातें ऐड करें जो आपने अपने essay में भी लिखी है. तो जैसे अगर कोई आपने पोजीशन ली हुई है तो वो आपने अपने essay में लिखी हुई है, वो अगर हो सके तो वो टीचर आपके recommendation letter में भी ऐड करे because that's sort of like a confirmation. So yeah. Yeah. And Sharik, you want to add something on letter of recommendations? In regard to Commonwealth shared, recommendation letters are not going to be the criteria that they are going to give you scholarship on. It's like you know, after verification sort of thing. Because when you are applying for Commonwealth shared, you don't need to apply for recommendation letters. They'll when you've submitted your application, they are going to say that if you are selected, then in the next step they are going to ask for your recommendation letter. So how it goes is, I think हमने इस पे भी बात नहीं की, after you know selection process क्या होता है. So in Commonwealth shared, they are going to first, the university is going to nominate you. As I said कि मैंने University of Leeds में apply किया, University of Bristol में. So they are going to send me an email that we have nominated you for this. Nomination means you are 90% there. You know, now उन्होंने Yeah. सिर्फ आपका background check करना है, recommendation letters देखने हैं, references वगैरह, all that.
क्रिमिनल रिकॉर्ड वो चेक करते हैं आपका वगैरह वगैरह. सो इस हिसाब से फर्स्ट देयर इज गोइंग टू बी अ नॉमिनेशन लेटर. Then after the nomination they are going to ask for your recommendation letters. You have to provide them 3 recommendation letters. In my case I provided like one from my HOD, one from my lecturer, and the other one from my director where I was working. बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जैसे Erasmus के अंदर मुझे याद है कि मैंने बहुत एफर्ट पुट की थी रेफरेंस लेटर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको रेफरेंस लेटर की बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी. इसी तरह आई गेस शिवनिंग के अंदर भी था. कॉमनवेल्थ के अंदर क्योंकि सिलेक्शन आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो देन यू डोंट, वो ये देखेंगे कि ये जो उसने बात की है ये ठीक की है, क्रॉस वैलिडेट वो करेंगे, चेक करेंगे, वो क्रॉस चेक करेंगे. बाकी जो है वो इसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती. रिकमेंडेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप उस बंदे का रिकमेंडेशन लेटर दो, 3 का देना होता है आपने, जो कि 100% श्योर है कि वो ऑन टाइम, क्योंकि कॉमनवेल्थ के अंदर वो टाइम लाइन आपकी जो है, उन्होंने कहना है कि विद इन 5 डेज, 10 डेज, 7 डेज, आई थिंक 2 वीक्स का टाइम था मेरी दफ़ा, इस टाइम के अंदर आप जमा करवाएं ही करवाएं. ठीक है. सो आपने जैसे ही अप्लाई करना है, आप नॉमिनेट हुए हैं, नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन के दरमियान 1 महीने का गैप होगा. ठीक है. तो उस टाइम के अंदर आप जो भी लिखना लिखाना है, जो भी आपने कंफर्म करवाना है, आप अपने रेफरी से रब्ता कर लें और उनकी ईमेल से जाएगा वो. आई थिंक उनकी ईमेल से जाएगा, या अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट लेटर हेड वगैरह प्रॉपर होना चाहिए. सो उस हिसाब से आपने फिर उनसे रब्ता कर लिया, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे ग्रुप के अंदर ये कॉन्वर्जेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पे काफ़ी स्कॉलर जो नॉमिनेटेड थे, वो एट द लास्ट डेज वो टेंशन में थे कि हमारे HOD ने जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे अपनी HOD को एटलीस्ट 3 दफ़ा कॉल करनी पड़ी थी कि प्लीज़ मुझे वो दे. ऐसे ही है. ठीक है. सो उस हिसाब से आपको खुद पता होगा कि कौन सा बंदा है जो कि एक्सेसिबल है, कौन सा है जिसने इज गोइंग टू टेक एन एटर्निटी टू रिप्लाई. सो अब उसी का, क्योंकि इरास्मस के अंदर ये बाकी स्कॉलरशिप जहाँ पे उन्होंने रेफरेंस की बेस पे आपको स्कॉलरशिप देनी है, इट शुड बी लाइक कि अगर कोई बंदा अपनी फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट है, आपका कोई HOD है जिसकी बहुत रिसर्च इम्पैक्ट है, तो आप उससे रेफरेंस लें. पर यहाँ पे काम मकसद जो है वो क्रॉस वैलिडेशन है या वेरिफिकेशन है. सो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एम हाई करने की जरूरत नहीं है. इट शुड जस्ट कि जो वक्त के ऊपर आपको दे दे रेफरेंस विद इन द टाइम लाइन. सो या आई थिंक So yeah, I think letter recommendations भी covered हो गए, and I think अब तो almost सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में. ये Yeah. कोई और चीज रहती नहीं की फौजिया? मुझे यही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से रिलेटेड ही बात कहनी थी कि कॉमनवेल्थ मास्टर्स में ये होता है कि आपको पहले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाइक डिजिटली उनको भेजना होता है. ठीक है. तो मतलब वो ईमेल आएगी, वो जो भी प्रोफेसर या जो भी आपने पर्सन को नॉमिनेट किया है उनके पास, तो वहां से वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो टाइप इन करके अंदर भेजते हैं. फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मेरे वक्त में तो ये था कि वो आपसे जो है मांगते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने आई थिंक उन्होंने स्कैन्ड कॉपी मांगी थी, उन्होंने पोस्ट नहीं मांगा था, स्कैन्ड कॉपी मांगी थी. तो वो फिर आप जो भी उन्होंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है वो आप कोशिश करें कि उसी वक्त फिर जो है ना वो आपको प्रिंट करके लेटर हेड पे सिग्नेचर और अपना स्टैंप लगा के दे दें. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो ये आपकी जब सिलेक्शन होगी ना, तो वो अराउंड होगी समर हॉलीडेज में, जो है ना आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा होगा कॉमनवेल्थ की तरफ से, और वो तभी आपसे जो है ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं. सो इट्स बेस्ट कि आपके पास वो पहले से रेडी हो, तो आप जो है ना वो उनको सबमिट करवा सकें. क्योंकि फिर ये होता है कि अगर समर हॉलीडेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर आप अगर वो हॉलीडे वगैरह पे गए हुए हैं तो फिर आप क्या करेंगे. तो ये जो है कि थोड़ा आप जो है ना पहले से प्रेप कर लें, या अगर आप पहले से प्रेप नहीं भी कर सकते हैं तो आप जो है ना ये श्योर आपके पास ये कंफर्मेशन हो कि आपको वो लेटर मिल जाएगा, because it plays a key role at that point. So yeah. So yeah, I think अब सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, and yeah, and once again I would say like thank you very much for your time, because it was helpful for students, and I'm sure that this whole video will help students, and there were answers to so many questions that we got. So yeah, and that's all, and now I will